यस, गुड मॉर्निंग प्रतीक भाई। गुड मॉर्निंग प्रतीक भाई। गुड मॉर्निंग। सो अभी कैसी है तबीयत? वो तो ठीक है। ऑल फाइन? हाँ, फाइन फाइन। घर में सब अच्छे हैं? सब अच्छे। ओके। सो आज बंगाल इलेक्शंस एनडीए हार गया। सुबह सुबह थोड़ा देख रहा था मैं। फिर मैं एक्चुअली आज ऑफिस आया हूँ इसके लिए। ओके। सो द पीपल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय। वो तो देखो, इसमें तो क्या है, अभी वही अपना वही आ जाता है, टाइमिंग वाली बात ही आ जाती है। अभी अभी इवेंट है, वो हर साल आने वाली है। अभी ट्रू। नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई इलेक्शन तो होगा ही। 100%। हम्म। कल ओमाहा में था ना, बर्कशायर हाथवे का कल एजीएम। आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हो? yesterday there was a AGM of Berkshire Hathaway. हाँ यार, करेक्ट, 20% प्रॉफिट इज अप, मैंने देखा वो। But those दोनों, they both are being salutable, huh? 98 years and 90 years and still they are doing well. राहुल जी, इसमें क्या है कि ये जो आपने सेमिनार अभी करा है ना, वो सबसे परफेक्ट करवा है, क्योंकि देखो, पैसे और परसेंटेज, जो पैसे है वो लिमिटेड है अपने पास, और टाइम वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्या नहीं है कि परसेंटेज, अपने को कितना रिटर्न चाहिए। Either we pray to God that we can also live like the Charlie Munger or पॉसिबल है सर, ये आज आज का जो अपना सेमिनार है ना, अगर जो आज प्रेजेंट होगा, जो डेटा के हिसाब से, अगर कोई भी करेगा ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1,000 करोड़ रुपीज, मतलब तुम्हारे में कितना तुमको कमाना है, तुम कर सकते हो। मेरे को ऐसा लग रहा है। Akshat, you hear? 1,000 crore he is talking about. Yes, sir. But it is going to be very interesting. स्टार्ट करें? लेट्स वेट फॉर 4 to 5 minutes जब तक सारे पार्टिसिपेंट्स एक बार आ जाते हैं, देन ओके। वी विल स्टार्ट फॉर द सेम। सर, वेलकम सर। Yes, sir. Good morning, Pratik bhai. Good morning, Rahul bhai. Good गुड morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Very, very unique topic, huh? I'll say that. Vikasa में it's a very unique topic. I'm sure सबको मजा आएगा. और Pratik bhai, how are you? सर फाइन सर। All good. We'll wait for 5 minutes and then start. यस ओके। यस सर, Yeah? विल बी वेट फॉर 5 minutes। Okay. राहुल जी, मेरे को ये स्क्रीन शेयर कैसे करने का, ये मेरे को अभी बताने का आएगा तब। अक्षत, अच्छा, मिल गया, शेयर द स्क्रीन। Yes, sir. अलाउ किया है ना स्क्रीन शेयर? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके Yes, ओके वो close की है. ओके, दिख रहा है ग्रेट। आपको? यस 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 यस, इट इज विजिबल ना प्रतीक भाई? Pratik bhai, we will, you can just do that, share the screen after we will complete our inaugural session. ओके 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 ओके।
So can we start now? Yes, Divya. Okay, Chairman sir. Jasleen. Jasleen, are you there? Divya? Yes. Yes, now you can start, Divya. Okay. Jasleen, Yes, Divya. yes, please start the session. Yes, am I audible? Yes, perfectly audible. Yeah, thank you. So tomorrow is too late. Yesterday is over. And now is exactly the right time to begin. So with that, greetings from Ahmedabad branch of WIRC. We all welcome you all to this session on realistic growth of this era. Well, in third or fourth grade, we all must have learned this formula regarding income minus expenditure gives us the amount of savings. Well, in reality, it should be rather something different. It should be income minus your savings, and then what the amount is left should be the amount of your expenditure. So savings should be everyone's first priority. And whenever we just get the opportunity of getting income, the first thing that we should do ever is to save it. And majority of the participants who have joined us today for this session rather would be cherishing the age of around 20s or early 20s maybe. So it is the right time to start right now. And a little savings today will definitely help us to create a great gain tomorrow rather. And yes, always remember that do not save what is left after spending. Rather, rather spend what is left after spending. Yes. So first of all, we need to save it, and then we need to spend it. And yes, mere savings is not just suffice, because we need to channelize that save wealth in a proper way to get the maximized return out of it. And yes, today's session is all about it. We do have our learned faculty
Mr. CA Pratik Modi sir with us to guide us. And thank you so much for joining us, everyone, for this session. We do have with us Akshat. Am I audible? Yes, Jaslin, you are audible. Yeah, can you please play ICI Moto first of all to begin this session with? Wait a second. Diva is there? Pardon me? Yes, yes, I'm playing. Okay. सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति तावं पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते अस्मिन् लोकः सर्वे तदूनात्यभिकश्चन एतद्वैता Thank you so much, Divya, for just a kind gesture. And yes, I would like to tell you all that we have such an eminent faculty with us. And to the cherry of the cake, we do have with us CA Harit Hariwal, sir, the chairman of Ahmedabad branch of WIRC, and Rahul Maliwal, sir, being the Vikasa's chairman. And yes, now I would like Vikasa's chairman, CA Rahul Maliwal, sir, to kindly address the crowd. Over to you, Rahul, sir. Harit sir, first, Harit sir. Hello. You can start, sir. Not about. Hello. Harit sir. Yes, sir. Sir, can you please motivate the student first? Sir, there's no issue. Sir. Please. Okay. No, please start. Please. Okay. Sir, please start. Good morning, everyone. I think it's good afternoon now. I'm so sorry. I'm since 8 o'clock at branch only. So good afternoon, everyone. I think first of all, let me compliment Rahul Bhai and the entire Vikasa team for coming up with such an interesting topic. Normally, we are so used to having income tax and GST and other stuffs. But I think maybe after a long time, we are having something on the on the investing and something on the compounding. And we are very happy to have CA Pratik Modi join us for this wonderful session. Right from the poster, I think you all would have seen the flyer. It is one of the most creative flyers that I have seen in the recent times. The vibrancy of the flyer, I think basically the entire committee was also so charged up to have a session like this. And even if you see the points that have been covered, right, from your compounding, the magic of compounding, or the benefit of long-term investing, it is the right time for you to understand the benefits of it, so that you can just try to inculcate in your schedule in your lives right now, and maybe once you become a chartered accountant, you can even take it further. So my kudos to the entire team for this. Thank you, and thank you, Pratik Bhai, for sparing your valuable time on a Sunday afternoon. I understand all the professionals are so busy entire week to get the time out on a Sunday is a little difficult. Thank you, sir. For the students, I think I'll specifically say that today also we have an India session at 2 o'clock. CA Chintan Patel, our regional council member, is going to take it, and believe me, he's one of the most, you can say, the expert faculties who can come and deliver on this topic. So kindly take the advantage of that session. And as far as the events are concerned, I think Vikasa team is doing phenomenally well. Try to contact them in case you have any specific events that you want to do, any specific sessions that you want to do.
And one more thing regarding the movement 73, I think I cannot stop, but I have to tell you in 2 minutes. I think we all are so passionate about that. Those students who have not joined it, maybe because of the exams or because of any reason, you can now still join it. The registrations are still open. It's a it's a 73-day long fitness event, entire virtual event. And tomorrow is a new week that is starting, so you can have the entire new schedule. So tomorrow we are starting with the Zumba at 7 o'clock. Then on Tuesday, we have a very surprise activity for all of you. So basically, it'll keep you engaged 1 hour in the morning. And there are a lot of running, cycling groups also. You can join those groups. So basically, I'll tell you, apart from the fitness thing, it will also help you in connecting to your fellow, students and participants. Because in today's difficult time, it is very important to stay connected. And you will, I just like to share with you that 444 branches from our country have joined us. More than 2,100 participants are there. And CAs, non-CA students, even people from engineering and doctor background, medical background are also there part of this event. And we have 15 residents even from outside the country. So you can imagine the the value that this event will create. So if please register for that. I think the Vikasa team will help you with the registrations also. And if you have any questions, any doubts, they can help you. You can contact me. We'll be always there to serve you. Thank you so much and have a very enriching session. And thank you, Pratik bhai, for taking your time. Thank you, sir. Thank you so much. The backbone of Vikasa and the WIRC branch of Ahmedabad, Mr. CA Harit Hariwal, sir, for spending your precious time out, because I know since 8:30 in the morning you are going to attend the sessions like back to back from morning. So thank you so much for scheduling out this also. And now I would request Rahul Maliwal, sir, to address the crowd. Thank you, Jasleen. The chairman of Ahmedabad branch, CA Harit Hariwal, the faculty of the session, CA Pratik bhai, the coordinator of the session, Akshat, Divya, Jasleen, and everyone, and all the dear students. Good afternoon to everyone. The first of all, I would like to congratulate the entire branch and especially the Harit bhai for such a great moment. And this is, I think, this is the historical moment. And we, all the students, those who have not yet participated, please take the participation in this, because it is the life changing. I would say that this would be a one type of life changing moment. So those who have yet not registered, kindly go and register for the same. Now, along with that, I would like to mention that we at the Vikasa are doing various different programs. We are also working with the COVID Army, that is the Vikasa COVID Army, to support the different members and at the society at large, I would say, in relation to the food, blood, and everything. So you can contact our Vikasa team and also can take the part in the same to help the society. The Vikasa it is only for the student and by the student for the student. So you can also contact, and those who are willing to participate in the works of the Vikasa, you can contact with the team and take the active participation directly or indirectly in the team of along in all the programs of the Vikasa. Now, coming back to the today's session, this session is something very apart from the GST. This is the topic which is very close to my heart, because now the today's session is just focused on the compounding, and the compounding is the eighth wonder of the world. That is not that has been said by the great sir, that is the Sir Einstein, Albert Einstein, and he also failed to understand what is compounding. That's why he told that it is the eighth wonder of the world, because the compounding works as and when time passes. You all must have heard about the Warren Buffett, yes, but you have not heard about the Peter Lynch. You have not heard about the anyone though, because the Warren Buffett has compounded his wealth approx 20 to 22% over the last 67 years. But there are some persons, those who have compounded even faster than the Warren Buffett. That is Peter Lynch. He has compounded 28%. There is someone who has compounded 65% CAGR, but their wealth is more below than the Warren Buffett. The reason behind that, because he has given so much time to the compounding. Till right now, I think the Buffett's current value worth is $90 billion around, and till the age of 60, he was just $3 billion. That means after 60, he managed to get the 97% of his wealth. So you can understand what is the magic of the compounding. The Pratik bhai will take you further that if you invest 500 rupees in the current age of 20,
And if you start investing after, I would say like after 6 years, like at the age of 26, what will the difference in the total corpus at the end of the period? So that's the magic of the compounding. And we have also focused in this particular webinar, that is the journey of Mr. Ramdev Agrawal. He is also a chartered accountant, how he has made 0 to 1,000 crore by the way of compounding. And that is, I am talking about wealth. Right now, his wealth would be around 5 to 6,000 crore. And at the end, I would focus that this is the this topic is not just the way of the investing. This topic is also very good for the purpose of your future aspiration, because the India is going to be the superpower. I am not saying that. It has been advocated by the many philanthropists that it is going to be the superpower in the next 25 years, because we are the population of 1.35 billion, and it is being the consumption driven market. So there is no one can stop us to go further, and the financial assets are going to be the super wealth creator in the coming future. So now I'll again hand over to the coordinator to take the session forward. Thank you so much. Thank you so much indeed, Rahul sir. You have shared wonderful insights and introduction of today's session already. And now I would like to thank, first of all, Vikasa and the entire team of Vikasa. How eagerly you are organizing event day by day and growing so very fast. Now, because you are doing these sort of events, there are vaccination drive, plasma drive and all. So we are going to benefit to the humanity and society in large. So you are the true warriors. Thank you so much to the entire team and the participants who are participating for this day. Now, I would like to welcome Divya, MCM, to cater and introduce the faculty for today's session. Thank you, Jasleen, for this opportunity. Pratik Modi, sir, is a CA from profession. He is partner at Modi Jain and Company. His core area is providing personal finance consultancy service, especially in mutual funds and direct equity since 2014. He is usual columnist on equity market. We welcome you, sir. Thank you so much, sir. And you can take forward the session now. First of all, thank you राहुल सर and हरीश सर. मतलब ये सेमिनार आपने अच्छा खासा एक अरेंज किया है, क्योंकि ये 20 मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अभी होंगे उनकी एवरेज एज 20 इयर्स के आसपास होगी. मतलब ये क्या है कि एकदम करेक्ट समय है. ये अभी समय क्या है कि एकदम परफेक्ट टाइम है. मतलब कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है. मतलब जो 1000 करोड़ का जो टारगेट एक बताया है, मतलब ये पॉसिबल है अगर आप यही मोमेंट पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो ये मतलब एकदम इजीली पॉसिबल है. मेरा इंटेंशन ये है कि आपको सिर्फ पैसे मतलब कलेक्ट अपने को बनाने नहीं है. खाली 1000 करोड़ जो है अपने को करना नहीं, क्योंकि करना होता अगर 2030 से भी आप करोगे तो भी पॉसिबल है कि आप 60 या 70 इयर्स में आपके पास 1000 करोड़ हो सकते हैं. पर क्या करने का 60 साल और 70 साल के बाद आपके पास 1000 करोड़ हो तो पैसे का कोई मतलब नहीं है. अपने को पैसे रख के नहीं जाने का है, अपने को पैसे को एंजॉय करके जाने का है. तो ये कब पॉसिबल होगा कि अगर आपकी ये 2040 मतलब 40 साल या 50 साल के आसपास होगा तो ये पैसे को आप एंजॉय कर पाओगे. नहीं तो मतलब फिर क्या होगा कि आप रख के चले जाओगे और कोई यूज करेगा, उसका कोई सेंस नहीं है. तो ये जो 2020 वाला जो एज है ना, मतलब परफेक्ट टाइमिंग है. और अब मैं बोल रहा हूँ कि 1000 करोड़ है ना, एकदम ईजी है, पर पॉसिबल है. मतलब कर सकते हो आप, एक्यूमुलेट कर सकते हो, पर इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, क्योंकि आपको 30 साल तक जाने का है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएगा. जैसे अभी कोरोना आया है, ऐसे आगे जाके बहुत कुछ आ सकता है जो इक्विटी को मतलब देखते हैं कि 10 साल के बाद कुछ ना कुछ इक्विटी में ऐसा कुछ आता ही है कि जो फॉल होता ही है. तो ऐसे बहुत सारे अपने को इवेंट्स आ सकते हैं. अभी अपने स्टार्ट करते हैं. जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो बात करी है राहुल जी ने, मैं एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर, ये आप देख रहे होगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मीनिंग सिंपल टर्म्स में बोलूं, आप ऐसा सोचो कि आपके पास 1 रुपया है, आपको ऐसा करना है कि हर दिन मेरे को डबल करना है. तो आप बता सकते हो, कोई गैस कर सकते हो कि 30 दिन के बाद आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं? सर कहना है? हाँ, मतलब आप कुछ कुछ गैस कर सकते हो कि हर दिन आपके पास 1 रुपया है. 10 crores.
कितने करोड़? 10 or 100 में भी। आप देखोगे मैंने पूरा एक्सेल बनाया है, तो आप देखोगे कि अगर ये 30 साल तक ऐसा करोगे ना तो आपके पास 53 करोड़ रुपीस होंगे। पॉसिबल भी नहीं है कि हर दिन ऐसे डबल करते हो, खाली 30 दिन में 53 करोड़ होते हैं। और ये आप देखोगे कि 25वें दिन में आपके पास सिर्फ 1 करोड़ 67 लाख होते हैं। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आपका 25 दिन से स्टार्ट होता है, खाली सिर्फ 5 ही दिन में आपके 53 करोड़ रुपीस हो गए। सीधा अप्रोक्स 1.5 करोड़ से की वैल्यू थी, उसकी अप्रोक्स सीधी वैल्यू हो गई आपकी 54 करोड़। मतलब सीधा 54 करोड़ का आपका सीधा जंप हो गया सीधा 5 दिन में। ये मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है अपने रियल टर्म्स में कैसे पॉसिबल है, मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गया। अभी मैंने जैसे बताया कि जो भी अभी स्टूडेंट्स है उसकी एवरेज एज है 20 ईयर्स के आसपास होगी, तो समझो कि कोई मंथली 1000 रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट करता है। हाँ, 1000 रुपीज का इन्वेस्ट करता है और अपने समझते हैं कि उसका ईयरली रेट ऑफ रिटर्न 12% के आसपास आता है। तो आफ्टर 30 ईयर्स उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 2,32,000 के आसपास होती है। आफ्टर 20 ईयर्स मतलब मार्च 2040 में उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख के अप्रोक्स होती है। और 2050 में मतलब 30 ईयर्स के बाद 35 लाख और 2060 में उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रोक्स 1 करोड़ 18 लाख रुपीस होती है। तो आप देख रहे हो कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कब होता है? मार्च 2050 के आसपास होता है। तो सीधा 35 लाख से उसकी वैल्यू सीधी हो जाती है 1,20,000 करोड़। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो अपने ने आगे देखा कि कैसे वर्क्स करता है, जैसे लॉन्ग टर्म में ऐसे ये पूरा डिफरेंस आप देख सकते हो कि वर्क्स करता है। अभी इधर आप देखोगे कि ये 1000 का इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया, अगर ये 12% है मैंने समझता हूँ मेरे को रिटर्न मिलेगा। अभी समझो कि 12% का सीधा 13% हो गया, खाली 1% एक खाली बढ़ता है। तो देखोगे आप सीधा 1 करोड़ 63 लाख, इधर पहले था 1 करोड़ 20 लाख अप्रोक्स था। तो सीधा आप देखोगे कि कितना बड़ा जंप आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 40 लाख का जंप आ गया, खाली सिर्फ 1% रिटर्न अपना बढ़ता है ईयरली के हिसाब से। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो वर्क करता है, ये जो 8 वंडर क्यों बोलते हैं, ये देखो आप एक ही परसेंटेज से बढ़ गया तो कितना अमाउंट में आपके फर्क आ गया। अभी इधर आपने देखेंगे कि ये कितना पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो स्टार्ट 2050 से स्टार्ट होता है, पहले 8 लाख रुपीज था, पहले आपका 2030 में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2.5 लाख रुपीज था और सीधा 2040 में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 लाख रुपीज हो गई। तो सीधा इधर 9 लाख का जंप आया, वो जंप सीधा बढ़ के सीधा 32 लाख हो गया। और 2060 में मतलब 10 से ही साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सीधी डबल से भी मतलब एकदम से ज्यादा हो गई। देखो 1 करोड़ में 20 लाख रुपीज हो गई। अभी ये मैंने आपको बोला कि एकदम इजी है, ये अपने कर सकते हैं, पर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेबी का एनालिसिस है कि 99% पब्लिक है कि जैसे ये 10 लाख रुपीज इसका हुआ है और 2050 में 32 लाख रुपीज हुआ है, इतना पैसा आता है ना तो जनरली पब्लिक विड्रॉ कर लेती है अपने पैसे। और एक्चुअली वो उसके बाद ही उसको रखने का होता है कि रियल उसका रिटर्न उसके बाद ही बढ़ता है। जैसे आप देखोगे कि 32 लाख है वो सीधा 1 करोड़ 20 लाख रुपीज हो गया। अभी इधर ही ज्यादातर पब्लिक पैसे अपने विड्रॉ कर लेती है। तो इधर एक है कि आपके पास पेशेंस इसमें बहुत जरूरी है। ये अपना टेस्ट ही होता है, पेशेंस का ही टेस्ट होता है, क्योंकि इतने टाइम में बहुत सारे मूवमेंट आ गए होंगे आपके, मतलब ऑलमोस्ट ये 30 साल का पीरियड है, तो 30 साल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, जैसे अभी कोरोना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी आ जाएंगे। तो एक ये हो गया। अभी समझो कि डिले इन इन्वेस्टमेंट, अभी ये मैंने ऐसा बताया कि आपकी एज है 20 ईयर्स और आप ये इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करते हो 10 साल के बाद। 10 साल आप कुछ नहीं करते, जनरली सारी मेजरली जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि मतलब 90% पब्लिक मैंने देखा है कि 30 ईयर्स के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। वो सबसे गलत है, मतलब गलत इन द सेंस के जो आपका टारगेट हो जल्दी आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो ऐसा आपने करते हैं तो इसका डिले इन कॉस्ट कितना आता है? तो 2040 में मतलब अगर 2020 में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 11 लाख अप्रोक्स, वही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,32,000 हो जाती है। तो आपका लॉस कितना हुआ? 9 लाख रुपया। जस्ट 1,20,000 इन्वेस्टमेंट आपने 10 साल में नहीं किया तो उसके कारण इतना लॉस, आपका 9 लाख का लॉस हो गया। अभी ये जो 10 साल है वो गए, अभी आप ला नहीं सकते उसको, मतलब ये इन्वेस्टमेंट टोटली आपका लॉस हो गया लाइफ से, क्योंकि 10 साल आपके चले गए। ऐसे ऐसे आप करोगे
तो आपका 2050 में 34 लाख का लॉस हो गया, 1,20,000 से खाली 34 लाख का लॉस हो गया। और यही सेम चीज अगर 2060 मतलब 10 साल डिले हो गया तो 1,20,000, तो ये उसका लॉस आपका 1 करोड़ ने 28 लाख रुपए हो गया। तो ये हुआ पूरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें किसी को कुछ डाउट है? I guess no, sir. कोई डाउट है इसमें कुछ? ए पावर ऑफ कंपाउंडिंग? No, sir. ओके, तो बस मैंने जैसे बताया कि 1000 करोड़ वाला जो पूरा गेम है, इसमें जैसे आप रामदेव अग्रवाल का भी देखोगे तो उनका भी मैंने पोर्टफोलियो देखते हो तो कभी 500 करोड़ गया है, कभी 250 करोड़ भी हुआ है। तो मतलब इन्होंने जो पेशेंस रखी है उसके कारण ही इनका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि जल्द से जल्द आप, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि अभी से अभी जैसे ये सेमिनार खत्म होता है कि जस्ट एक SIP रजिस्टर्ड कर दीजिए, जिसमें आपको ये मतलब आपका एक जो गेम है पूरा स्टार्ट हो जाएगा अभी से। क्योंकि 1000 रुपीज के इतना फर्क आ जाता है। समझो कि इधर 1000 रुपीज की SIP है, अगर आप 2000 रुपए का कर देते हो, 3000 का समझो कि कर देते हो, तो उसका वैल्यू आपके 2060 में कुछ 4 करोड़ 90 लाख रुपीज हो जाता है। अगर ये 13% का भी रेट है, उसको मैं थोड़ा भी 1% भी बढ़ाता हूँ तो देखो इसका फर्क कितना आता है। अभी अपने एक दूसरे टॉपिक पे, म्यूचुअल फंड्स पे, ये कहाँ से अपने को ये रिटर्न कमाना है, तो ये अपने पास क्या इंस्ट्रूमेंट ऐसे है कि जहाँ से अपने रिटर्न कमा सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट्स है कि जिसमें आप अपने छोटी छोटी अमाउंट से भी जो वेल्थ एक बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। जैसे कि लैंड और प्रॉपर्टी मार्केट में जनरली अपने को टिकट साइज बड़ा होता है। मतलब अभी के टाइम के गिने तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया हो तो ही अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अपने पास एक दूसरा एक टूल है कि जहाँ छोटी छोटी अमाउंट से भी अच्छा खासा कॉर्पस अपने कर सकते हैं, जो है म्यूचुअल फंड्स। आज की तारीख में बहुत बहुत ग्रो हो रहा है। पर अभी ऐसे देखने जाओ, डेटा के हिसाब से देखने जाओ कि हार्डली अभी 2 या 3% पीपल अभी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड की फिगर भी अप्रोक्स उतनी ही होगी, उसके आसपास ही होगी। मतलब ये अभी बहुत ग्रो होना बाकी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अपने इंडिया और अमेरिका की कंपेयर करेंगे तो अमेरिका में ऑलमोस्ट 20% पब्लिक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, जो यहाँ पे हार्डली इंडिया में 2 या 3% के आसपास ही है। ये म्यूचुअल फंड क्या है, अपने आज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो मैं जब म्यूचुअल फंड बोलूँ तो समझ जाइए कि इक्विटी की बात हो रही है। तो ये जो म्यूचुअल फंड क्या है, तो अपने को म्यूचुअल फंड समझने के लिए पहले तो इक्विटी का लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अपने को इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो तो अभी के तारीख में 3 वे है कैसे अपने कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। पहले तो एक रिसर्च करिए और आइडेंटिफाई करिए स्टॉक और उसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरा है कोई कंसल्टेंट को हायर कीजिए और उसके रेकमेंडेशन के हिसाब से अपने इन्वेस्ट करिए। और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। जो पहला 2 अपने नहीं कर पा रहे तो अपने डायरेक्ट सिंपल है कि अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। अभी इसके अगर आपने खुद रिसर्च करते हैं और आइडेंटिफाई स्टॉक करते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी है। So this option is more suitable for whom who have good knowledge of equity market and ability to identify the good quality of the stocks. अभी जो पहला वाला ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी, अभी इसमें आपको बहुत स्टडी की जरूरत है। मतलब इतना इजी नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप किसी ने थर्ड पर्सन ने आपको बोला कि भाई ये स्टॉक है तुम ले जाके, ऐसा कभी भी इक्विटी में नहीं करना है। अगर आपको खुद रिसर्च है, आप दिन के 1 घंटा 1.5 घंटा आप स्पेंड कर सकते हो इसके पीछे, तो ही ये करिए। नहीं तो आप मेरी ऐसी रिकमेंडेशन होगा कि आप मत करिए ये, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि स्टॉक आप आइडेंटिफाई करो और उसमें इन्वेस्ट करो। जैसे मैं रामदेव अग्रवाल सर का मैं एग्जांपल लूंगा तो वो लोग का क्या है कि पूरा फोकस स्ट्रेटेजी है। मतलब फोकस स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि वो 20 या 25 स्टॉक ही सिलेक्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, क्वांटिटी बिल्डअप करते हैं। अभी आप ऐसा करने जाओगे, अगर किसी के थ्रू करोगे तो आज कोई इंसान आपको बोलेगा कि ये स्टॉक ले ले,
फिर कल हफ्ते बाद भी दूसरा कोई एक इंसान आएगा आपको बोलेगा कि ये स्टॉक ले ले, तो उससे क्या होगा कि क्वांटिटी बिल्डअप नहीं होगा, रादर आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे, उसमें आप ये पैसे कभी भी मतलब कर ही नहीं पाओगे। फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली सिर्फ ये आपका लाइफ का जो भी टाइम आपने कहा सारा स्पेंड हो जाएगा और एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कुछ बढ़ने वाली नहीं है। तो ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है तो मैं उसको ही रेकमेंड करूंगा कि आप दिन के 1 घंटा स्पेंड कर सकते हो, अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। अभी उसके रिसर्च के बारे में भी बहुत बड़ा है, कैसे करना है उसका एक अपने राहुल जी से बात करेंगे कि अलग एक सेमिनार रखे कि कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, तो ये एक पूरा है। फिर दूसरा है कि एक कंसल्टेंट को हायर कीजिए। ये पहला वाला अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं तो बेस्ट एडवाइस करूंगा कि कोई कंसल्टेंट को आप हायर कर दीजिए और उसके रेकमेंडेशन के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करिए। तो उसके कारण एक तो क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा ग्रो होगा और आपको उसकी वैल्यू आएगी। अगर ये आपको दोनों में भी कुछ नहीं करना है, मतलब आपको ये सब है कि जैसे खुद रिसर्च भी नहीं करना है या किसी के रेकमेंडेशन पे आपको भी ऐसा लगता है कि यार वो क्या कुछ गलत दे देगा और मेरा पोर्टफोलियो पूरा बिगड़ जाएगा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड ही करिए और कुछ नहीं, मतलब कोई आपको टेंशन नहीं है। ये म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है ये अपने देखते हैं। In this option, fund manager who manage the funds of the mutual fund is investing in equity market. The main advantage of the mutual fund is that we can get expertise of the fund manager with the nominal fees. That is 1 to 2% of the expense ratio. जो expense ratio होता है वो आपके रिटर्न में एडजस्ट हो जाता है। अभी मैं एक फैक्ट शीट आपको बताता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट है कि कैसे होता है पूरा। मैंने एक डाउनलोड करके रखी है, फरवरी महीने की एक्सिस की फैक्ट शीट है। अभी मैं एक्सिस ये म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, इसका मतलब ये रेकमेंडेशन नहीं है, बस जस्ट खाली ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ये लार्ज कैप फंड है। अभी आपने देखा ये इतने स्टॉक है, फरवरी महीने की पूरी फैक्ट शीट है। जैसे कि आप 10,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे एक्सिस ब्लू चिप फंड में, तो क्या होगा कि आपके 10,000 पैसे ना इस परसेंटेज में डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें से क्या होगा कि 10,000 का ऑलमोस्ट 10% अपने को HDFC बैंक में चले जाएंगे। ऐसे ऐसे करके ये पूरी फैक्ट शीट है, तो आपके पैसे सारे इसमें चले जाएंगे। अभी ये हेडेक पूरा फंड मैनेजर का है, इसको अभी HDFC नेक्स्ट महीने में कितना करना है, उसको निकालना है, दूसरे को स्टॉक आइडेंटिफाई करके ऐड करना है, इसमें से किसी को एग्जिट करना है, वो सारा हेडेक इसका फंड मैनेजर का है। अपने को सिर्फ खाली उसका 1% या 2% जो एक्सपेंस रेशियो जो फंड का होता है, जैसे भी आप गूगल में भी करोगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड एक्सपेंस रेशियो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 0.6 से 1% है, वो आपका रिटर्न में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको अलग से देना नहीं है। तो बस इतने ही छोटी अमाउंट में अपने को एक फंड मैनेजर एक्सपर्टाइज का अपने को बेनिफिट होता है। तो ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड के बाइफर्केशन है, एक तो होता है एक्टिव फंड्स और दूसरा होता है पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स किसको बोलते हैं? जो एक्टिव फंड, जैसे मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड बताया, ये एक्टिव फंड है क्योंकि इसमें कोई एक फंड मैनेजर है जो पूरा फंड को ये मैनेज करता है। और दूसरा होता है एक पैसिव फंड जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। इस इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, एक सॉफ्टवेयर उन लोगों ने डेवलप किया होता है और जो भी इंडेक्स फंड लेते हो आप उसको ये कॉपी करता है और कुछ नहीं करता है। जैसे इंडेक्स फंड इन द सेंस के निफ्टी फंड, जो निफ्टी 50 है जिसमें 50 स्टॉक है, उसको ही पूरा कॉपी करता है, जिसको बोलते हैं अपने को इंडेक्स फंड। अभी जैसे एक्टिव फंड्स है उसके भी और बाइफर्केशन है, जैसे लार्ज कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, अभी आज की तारीख में उसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। जो लार्ज कैप फंड है वो पहली फर्स्ट 100 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट ऑफ द कंपनी वो इन्वेस्ट करती है। दूसरा होता है मल्टी कैप फंड्स, उसमें कोई कैप नहीं है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको जो कंपनीज लगता है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। और दूसरा होता है मिड कैप फंड्स, जो पहले 100 वाली के बाद वाली जो 101 से 250 वाली जो भी मार्केट कैप जिसके हाईएस्ट आते हैं वो सारी मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और दूसरा होता है स्मॉल कैप फंड्स। इधर आप देखोगे जैसे ये लार्ज कैप फंड्स है, आप इसमें देखोगे तो सारी लार्ज कंपनी है। अभी दूसरी है उसके बाद वाली मिड कैप फंड्स, तो इधर आप देखोगे सारी की सारी मिड कैप कंपनीज है, इसमें कोई भी लार्ज कैप कंपनीज नहीं रहेगी। और दूसरी होती है एक फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे मैंने बताया ऐसे स्मॉल कैप फंड्स। जैसे मैंने बताया कि हाउ एक कैसे वर्क करता है इन म्यूचुअल फंड द AMC, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड जैसे है, तो एक्सिस एक AMC कंपनी हो गई
इसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। वो अपने कलेक्ट द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, अपने से पैसे लेती है, एंड द फंड मैनेजर वो मैनेज द फंड ऑफ द इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग द मनी इन द इक्विटी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द फंड्स। जैसे कि लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप है तो मिड कैप में जाएगा। ये अपने से पैसे लेती है एमसी, और जो मैंने आपको बताया परसेंटेज के हिसाब से ये इन्वेस्ट करती है। अभी ये म्यूचुअल फंड में किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है? मतलब ये एएमसी कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने टाइप ऑफ फंड बताया, पैसिव फंड बताया, अभी इसमें कुछ डाउट? ओके, अभी इसके एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने आपको ये फैक्ट शीट से पूरा बताया कि समझो आपके पास अभी 20,000 रुपीज है। जैसे अभी एक अपने ये फंड का चले जाते हैं, हाँ समझो कि अपने पास अभी 20,000 रुपीज है। अभी समझो आप बोलते हो मेरे को रिलायंस के शेयर लेने हैं, रिलायंस का भाव अप्रोक्स अभी 2,000 के आसपास होगा, तो आपके क्या होगा कि 10 ही शेयर आएंगे रिलायंस के। पर सेम चीज आप 20,000 रुपया है, आप इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी सारी कंपनी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट कितनी कंपनी है? ऑलमोस्ट 33 कंपनीज है। आपको 20,000 में सीधा 33,000 का एक्सपोजर मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि समझो कि कुछ रीजन के हिसाब से रिलायंस में मतलब कुछ डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसमें रिस्क, रिलायंस अगर आपने शेयर्स लिया होगा तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें आप देखोगे कि रिलायंस का वेटेज कितना है, इसमें होगा रिलायंस, हाँ ये रहा, इसमें रिलायंस का खाली सिर्फ 5% वेटेज है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको 20,000 में बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ये इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड का। There's a basic concept of the financial management is that don't put all the eggs in the one box, and the mutual fund exactly flows the same philosophy. जो मैंने अभी पूरा एग्जांपल बताया 20,000 यही है। एक तो risk is a less risky compared to direct investment in the equity, as your money will be invested in the more number of the stock of the leading companies of the different sector compared to direct investment equity. जैसे मैंने ये पूरा बताया आपको कि आपका 20,000 है पूरा स्प्रेड हो जाएगा इतनी सारी कंपनीज में, तो ऑब्वियस है कि आपका डायरेक्ट इक्विटी से रिस्क इधर बहुत कम हो जाएगा। अभी एक दूसरा आता है एक डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का एक डिसिप्लिन। एक म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक एसआईपी होती है, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे बोलते हैं। अभी समझो कि आपने समझते हैं कि आपने 1000 की एसआईपी रजिस्टर्ड कर दी और आपने दिया बैंक को मैंडेट दे दिया कि 5 तारीख कोई भी मंथ की कोई तारीख को आपने मैंडेट दे दिया बैंक को कि ये तारीख को मेरे पैसे डेबिट होने चाहिए। अभी इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अगर मार्केट ज्यादा है तो भी आपके पैसे कटने वाले हैं, अगर कम है तो अच्छा ही है, कटने वाले हैं। तो एक डिसिप्लिन है जो डायरेक्ट इक्विटी में पॉसिबल जनरली नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, मतलब जो डेली है हर बेसिस पे, मतलब जो कोई रिसर्च करता है तो वो कर सकता है ये सब चीज। पर जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, मतलब एक होता ही है साइकोलॉजिकली होता है, वो क्या करता है कि रुकता है। समझो कि कोई शेयर्स का भाव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी का लेटेस्ट रहता है कोरोना है। अभी कोरोना में आप देखोगे कि मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, पर अभी सब लोग वेट करके बैठे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। डाउन जाता है फिर भी वो वेट करता है, मतलब समझो कि ये 15,000 है और 14,000 भी जाएगा तो भी वो वेट तो करेगा, बोले नहीं अभी और 13,000 जाएगा। फिर ये हर बार ये कभी इसका एंड ही नहीं है, मतलब वो ऐसा ही सोचता है। तो क्या करता है, वो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता है। तो अगर 13,000 से भी वापस 14,000 जाएगा तो उसको ऐसा होगा कि यार 13,000 पे जो नहीं किया तब तो इतना था, अभी और बढ़ गया। तो जो ये वाला है ना, इसके कारण क्या होता है कि पैसे जनरली वो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाता, और क्या होता है कि मार्केट फिर आगे बढ़ता ही जाता है, फिर वो आगे ये रह ही जाता है। ये वाला सिस्टम म्यूचुअल फंड में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपने मैंडेट दे दिया तो पैसे आपको डेबिट होने ही वाले हैं। जो ये वाला डिसिप्लिन है ना, वो डायरेक्ट इक्विटी में जनरली पॉसिबल नहीं है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का डिसिप्लिन। अभी डिसएडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड्स के? एक तो हो गया सिलेक्शन ऑफ द फंड्स। जनरली नॉर्मल मतलब देखने जाओ तो 90 या 95% पब्लिक क्या करती है कि अभी मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो जनरली क्या करेगी वो, कोई भी फंड, अभी गूगल में तो क्या है कि आजकल सारे डेटा इजीली अवेलेबल है। समझो कि एक्सिस ब्लू चिप फंड वो निकाल देगा और क्या करेगा, वो देखेगा पास के रिटर्न देखने लगेगा और इसके हिसाब से वो फंड आइडेंटिफाई कर लेता है और उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर देता है। पर ये सबसे गलत है कि ऐसे कभी भी फंड आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। अपने को फंड आइडेंटिफाई, आपको क्या करना पड़े कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो आपको रेगुलरली फैक्ट शीट देखनी पड़े। जैसे मैंने आपको बताया, ये फैक्ट शीट आपको हर महीने सेबी, और एक इंडिया में ही ऐसा है कि आपको सेबी 100% पोर्टफोलियो की फैक्ट शीट देता है।
जनरली दूसरी कंट्रीज में 100% का नहीं देता है, वो जनरली 10% का ही फैक्ट शीट देता है, 10% मतलब जो 10 ही शेयर की फैक्ट शीट देता है जिसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो। तो आपने को क्या करना है कि ट्रैक करना है, आपको थोड़ा देखना है कि ये जो वाला फैक्ट शीट है उसमें जो स्टॉक्स है वो बरोबर है। थोड़ा इसमें जैसे डायरेक्ट इक्विटी में जितना नॉलेज चाहिए इसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको रेगुलरली चेक करना है। फंड मैनेजर को भी देखना है आपको कि फंड मैनेजर जो इस फंड को मैनेज कर रहा है वो कितने साल से कर रहा है, मतलब इतना इजी भी नहीं है। तो ये वाला एक आप ध्यान रख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ द फंड। फिर जो भी आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करो तो एक आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी आप पैसे कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ला अभी वो इंसान भी कर रहा है तो मैं भी कर दूं, आपका एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए कि आपको इतने पैसे तो मेरे को एक्यूमुलेट करने ही करने। तो ये सबसे ये क्लियर आपका होना चाहिए। फिर सिलेक्ट दोज एएमसी वेयर द फंड मैनेजर डू नॉट फ्रीक्वेंटली चेंजेस। जो मैंने आपको बताया, जो फंड मैनेजर है ये जो भी फंड लेते हो तो आपको इसका फंड मैनेजर का ट्रैक पूरा देखना पड़ेगा, मतलब कितने साल से फंड मैनेज करता है। अगर ये फंड मैनेजर बार बार चेंज होता है कोई फंड में तो फिर मेरे हिसाब से वो फंड में आपको पैसे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फंड मैनेजर जैसे ही नया आएगा, हर फंड मैनेजर की फिलोसॉफी अलग अलग होती है। वो आएगा वो वापस चर्निंग करेगा, चर्निंग इन द सेंस के स्टॉक को रिप्लेस करेगा, कोई बेचेगा और दूसरा लाएगा। तो वो पॉसिबल, उससे क्या होगा कि फंड का रिटर्न जल्दी आएगा ही नहीं, बहुत टाइम लेगा वो फंड रिटर्न देने में। तो ये भी आपको एक रखना है, ध्यान रखना है कि फंड को भी सिलेक्ट करो तो। फिर दूसरा होता है जैसे एयूएम। अभी हर एक फंड का एयूएम होता है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, हाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड है, आप इधर देखोगे इसका फंड की आज की तारीख में मतलब फरवरी की टोटल वैल्यू है 23,496 करोड़। अभी ये फंड में 23,000 अप्रोक्स 500 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है, मतलब ये फंड बहुत बड़ा हो गया ये फंड। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये फंड को अगर ये सबसे हाईएस्ट इसका एक्सपोजर है एचडीएफसी बैंक में, अगर इसको एचडीएफसी बैंक में समझो कि कोई न्यूज के कारण कुछ नेगेटिविटी आती है तो अभी ये फंड को एचडीएफसी बैंक को रिप्लेस करना है तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्या है कि इसका पैसे बहुत ज्यादा लगे। अगर ये बेचना चालू करेगा एचडीएफसी तो एचडीएफसी बैंक का भाव और नीचे आ सकता है। तो इक्विटी में क्या है कि आपको वही फंड सिलेक्ट ज्यादा करना है कि जिसका एयूएम उसका टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू सबसे कम हो, मतलब कम हो। तो जनरली ऐसा कहते हैं कि 5,000 से 8-10,000 वाली जो भी फंड होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, वो ज्यादा रिटर्न देते बड़े से हिसाब से, क्योंकि वो क्या है कि फास्ट चर्निंग कर सकते हैं और दूसरा को स्टॉक परचेस कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ द फंड मैनेजर। जैसे मैंने आपको अभी बताया इसमें फंड मैनेजर का सबसे मेन रोल है। फंड मैनेजर का ही आपको वही डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक मेरे को परचेस करने, कौन से मेरे को सेल करने। तो जो फंड मैनेजर है उसको आपको मतलब पूरा ट्रैक करना पड़ेगा कि वो क्या सोचता है, वो आगे का उसका इंडिया का वो क्या सोचता है इंडिया के बारे में, और ग्रो करेगा तो कौन सा सेक्टर ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये भी आपको देखना है। फिर तीसरा ये लास्ट पॉइंट है, रीड द फैक्ट शीट ऑफ द फंड एंड मेक श्योर द कंपनीज इंक्लूडेड इन द फंड ऑफ द पोर्टफोलियो हैविंग द लो लिवरेज। जैसे आप ये पूरी मैंने आपको फैक्ट शीट बताई, इसमें आपको पूरे की पूरी कंपनीज देखनी है और आपको देखना है कि ये सारी कंपनीज है मतलब इसमें डेट लेवल कितना है। जैसे फाइनेंस कंपनी में तो डेट नहीं जनरल, जैसे टीसीएस है तो टीसीएस भी 0 डेट कंपनी है, पर ये पूरा आपको ट्रैक ऐसे करना है। ऐसा नहीं है कि वो जो कंपनी जो ले रहा है वो सब उसमें हाई डेट कंपनीज हो, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी ये सब पॉइंट के हिसाब से ऐसा भी लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी डिफिकल्ट है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अपने को टाइम इसको भी देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि 1% 2% रिटर्न भी आपका बढ़ेगा ना, तो एंड ऑफ द डे आपको बहुत उसके अमाउंट में बहुत डिफरेंस आने वाला है। तो ये तो हो गया अपना एक्टिव फंड्स के बारे में। अभी होता है एक इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड। As explained earlier, equity-oriented mutual funds are bifurcated into large cap, mid cap, multi cap, and small cap funds. The above category of the funds are further bifurcated into active and passive funds. जैसे मैंने बताया एक्टिव फंड जो एक्टिवली मैनेज बाय द फंड मैनेजर, और पैसिव फंड में कोई फंड मैनेजर होता नहीं है। एक अपने को एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड मैंने पूरा आपकी फैक्ट शीट बताई, वो एक लार्ज कैप फंड है जो फंड मैनेजर उसको पूरा मैनेज करता है। और they are free to invest in the stock without the maintaining the composition of the index। मतलब ये लार्ज कैप फंड हो गया। अभी इसके सेबी के मैंडेट के हिसाब से उसको फर्स्ट 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पर उसको वो नहीं है, वो 100 कंपनी में कितने भी पैसे डाल सकता है। जैसे रिलायंस
रिलायंस का वेटेज है 13% ऑफ द इंडेक्स। अगर इंडेक्स फंड होगा तो उसको कंपलसरी 13, जो जैसे आपने 1000 रुपीज दिया तो उसका 13%, मतलब 130 रुपीज आपको कंपलसरी उसको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है अगर ये इंडेक्स फंड होता तो। पर एक्सिस ब्लू चिप फंड को वो इंडेक्स को फॉलो नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसको लगेगा कि ये अच्छी कंपनी है तो उसके हिसाब से वो वेटेज देगा। जैसे उसने रिलायंस में कुछ 5% का, जैसे आपने देखा तो 5% के अप्रोक्स उसका इन्वेस्टमेंट है। मैंने 6.88% मैंने फैक्ट शीट 31/10/2020 के हिसाब से लिखा हुआ है। On the other hand, index fund means the fund who invest in the funds in the index, that is Nifty 50 or Sensex. They invest in the stock of the various company in the same proportion which they are carrying in the index. They are the sum of the popular index like the Sensex. Sensex उसमें 30 कंपनीज है और निफ्टी है उसमें निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज का कंपोजिशन है। अभी इंडेक्स फंड का सिचुएशन अभी इंडिया में कैसा है? Index fund as of now are not much popular in India. This is because the active funds are generating the more return compared to the passive funds. However, the proportion of the investment in the index fund is increasing as the mutual fund industry is gradually maturing in the India. The weightage of the index fund in the India is less than 10% in comparison to USA, where the weightage of the index fund is more than 50% as their market attain to maturity now. Once the more and more investment in the mutual fund is increasing in India, it is difficult for the fund manager of the active funds to generate the higher return compared to index funds. अभी इंडिया में इंडेक्स फंड क्यों पॉपुलर नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी आज की तारीख में क्या है कि 2 या 3% पब्लिक ही इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। तो अभी क्या है कि इंडेक्स फंड, अभी एक्टिव फंड जो है उसका रिटर्न इंडेक्स फंड से ज्यादा ही आता है। अभी जैसे आप देखने जाओगे कि निफ्टी 50 अगर आप इंडेक्स फंड लेते तो आपको 12-13% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। पर आज की तारीख में क्या है कि जो भी ये लार्ज कैप या मिड कैप फंड जो ये एक्टिव फंड्स है उसमें आज की तारीख में रिटर्न अगर कोई 2014 से भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो आज की तारीख में उसका 17 या 18 या ऑलमोस्ट किसी को तो 22% तक का भी रिटर्न आया हुआ है कोई फंड में। जैसे किसी ने मिड कैप फंड अच्छे लिए हो तो उसमें 22% तक का रिटर्न भी आया हुआ है, जो इंडेक्स फंड में अभी इतना रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि वो इंडेक्स को ही रिप्लिकेट करता है और इंडेक्स ने आज की तारीख में 12% 13% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। इसके कारण क्या है कि इंडिया में इंडेक्स फंड का वेटेज अभी बहुत कम है। यूएस में क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20% से ज्यादा पब्लिक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है। तो इसमें क्या है कि जब यूएस का भी जैसे अपना अभी फेज है ना, वो यूएस में भी ऐसा फेज पहले था, जो फेज अभी आगे जाके क्या होने वाला है कि इंडेक्स फंड की वैल्यू बढ़ने वाली इंडिया में, पर अभी उसके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम बाकी है। तो एडवांटेजेस ऑफ द इंडेक्स फंड, जैसे मैंने आपको उसमें एक्टिव फंड्स में बताया कि एक्सपेंस रेशियो, जो फीस होती है जो अपने इन्वेस्ट करते हैं उसमें से ही पैसे ऑटोमेटिकली उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का होता है, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है तो उसको अपने को कोई सैलरी देनी नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है, 0.1 या 0.5 के बीच में ये वेरी करता है। तो एक तो सबसे बड़ा क्या होता है कि आप 1000 रुपीज भी डालते हो तो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर ही होता है और कुछ होता नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको इंडेक्स फंड में मिल सकता है। दूसरा एक बेनिफिट है, investor need not worry about the performance of the fund manager. They need not to check only the index. They need to check only the index that they selected and the tracking error ratio of the such index fund. Lower the tracking error ratio of the index fund is better the performance of the index fund. ये tracking error ratio क्या है? Tracking error ratio ये है कि जो इंडेक्स ने बताया है कि इतने परसेंटेज में ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो भी कभी-कभी क्या होता है इंडेक्स फंड में होता है, ट्रैकिंग में मतलब होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं होता इंडेक्स फंड से, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर रेशियो। और दूसरा जो आगे मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए थे इधर कि म्यूचुअल फंड के, जो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये सब इंडेक्स फंड में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आपको सिंपल यही देखना है कि निफ्टी ने अगर 12% रिटर्न दिया है तो आपके फंड ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया। अगर आपने निफ्टी का ही फंड लिया हो तो मतलब आपने जो इंडेक्स का फंड आप सिलेक्ट करते हो उसको ही आपको जस्ट खाली इतना ही देखना है कि उसने अगर 12% दिया है तो आपके फंड ने मिनिमम 12 तो देना ही पड़े। अगर ऊपर थोड़ा ज्यादा आता है तो अच्छी बात है। अभी डिसएडवांटेज ऑफ द इंडेक्स फंड, डिसएडवांटेजेस क्या है? The performance of the active funds are the better than the index fund, and also the such performance may continue in the near future because in India mutual fund is not yet fully matured. तो एक तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एक्टिव फंड्स का रिटर्न अभी ज्यादा ही आएगा और मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल तक ये ज्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी मैच्योर हुई नहीं है। In the index fund, there are the no downside limit to invest in underperforming stock, as the index fund is replicate the weightage of the index. ये पूरा मैंने आपको एग्जांपल है
as the fact sheet of the HDFC Nifty 50 ETF of the October 2020. It includes the stock like ITC. अभी जो ये निफ्टी 50 का फैक्ट शीट देखोगे उसमें आईटीसी का वेटेज है 2.87% वेटेज ऑफ So sorry to interrupt you. Only Excel sheet is visible. Our PPT is not visible on the screen. एक मिनट अभी दिख रहा है? Yes, sir. Now visible. Okay. अच्छा. In the index fund, there is a no downside limit to invest in underperforming stock as the index fund replicate the weightage of the index. इसमें मतलब इंडेक्स फंड में कोई भी स्टॉक अंडर परफॉर्मर है पर उसका इंडेक्स में अगर इतना वेटेज है तो कंपलसरी वो इंडेक्स फंड को वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है. जैसे आप फैक्ट शीट देखोगे एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ की अक्टूबर महीने की, उसमें क्या है कि आईटीसी में उसने 2.87 वेटेज ऑफ एयूएम उसने इन्वेस्ट करे हुए हैं और एसबीआई में 1.44 वेटेज ऑफ 1.44 वेटेज ऑफ द एयूएम उसने इन्वेस्ट करे. ये जो दोनों स्टॉक है कभी परफॉर्म इतने किए नहीं लास्ट 10 इयर्स में. आप देखोगे तो ये दोनों स्टॉक ने अंडर परफॉर्म ही किया है. और उसके कंपेयर आपने देखने जाओगे तो बजाज फाइनेंस उसमें 1.75% ही इन्वेस्ट किया है और बजाज फिनसर्व ने तो सिर्फ 0.6% ही इन्वेस्ट किया है ये फंड ने एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ ने. जो ये बजाज वाले दोनों स्टॉक है उसने मतलब लास्ट 10 इयर्स में अच्छा खासा रिटर्न दिया है. मतलब डबल डिजिट अच्छा खासा मतलब 20 या मतलब 25% के अप्रोक्स तो रिटर्न होगा ही होगा. और ये दोनों स्टॉक ने तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया. आईटीसी और एसबीआई ने तो इतना कुछ खास रिटर्न आई थिंक सिंगल डिजिट में ही होगा रिटर्न. तो अभी क्या है कि अगर आपने इंडेक्स फंड लिया है तो आपको कंपलसरी आईटीसी में आपका इन्वेस्ट तो जाएगा ही जाएगा जिसने परफॉर्म ही नहीं किया है और एसबीआई में भी आपका पैसा तो जाने वाला है. पर सेम चीज अगर आपने कोई लार्ज कैप फंड लिया होगा, जैसे अभी दूसरा मैं एग्जांपल आपसे रीड करता हूँ. जैसे फैक्ट शीट ऑफ द एक्सिस ब्लू चिप फंड ऑफ द अक्टूबर 2020 which is actively managed large cap fund which include the Bajaj Finance. अभी आप देखोगे कि अगर आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड लिया है तो आपके बजाज फाइनेंस में 7.84% पैसे जा रहे हैं और वहां पे अगर आपने इंडेक्स फंड लिया है तो आपके पैसे बजाज फाइनेंस में तो सिंपल कि 1.75% ही जा रहे हैं. इट डज नॉट इंक्लूड और वापस दूसरा उसमें आईटीसी और एसबीआई तो है ही नहीं वो फंड में. So now if you are compared with the Axis Blue Chip Fund with the HDFC Nifty 50 fund, the weightage of the Bajaj Finance is more in the Axis Blue Chip funds. As the Axis Blue Chip funds have the more weightage in the Bajaj Finance, it will be perform the better in comparison to HDFC Nifty fund. तो मैं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्या होगा कि जो एक्टिवली मैनेज फंड है उसका रिटर्न ज्यादा ही आएगा. क्यों ज्यादा आएगा? ये रीजन के हिसाब से ज्यादा आएगा. अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए जब जैसे ये इंडेक्स फंड के हिसाब से आपने सोचे तो द इंडेक्स फंड आर द मोर सुटेबल फॉर द दोज इन्वेस्टर हु आर न्यू इन द इक्विटी मार्केट एंड द लर्निंग व्हाट इज एंड दे आर लर्निंग व्हाट इज द म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट इज वर्क. तो इसके इन लोगों के लिए अभी क्या है कि इंडेक्स फंड एक सही है. इन्वेस्टमेंट इन दोज इंडेक्स फंड्स व्हिच आर रेप्लिकेट द निफ्टी और द सेंसेक्स. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप निफ्टी या सेंसेक्स वही फंड अगर आपको इंडेक्स फंड में जाना है तो ये दोनों फंड को जो रेप्लिकेट करता है वही फंड लीजिए. The investor should not invest in the index for more than 10% of his and her equity portfolio as the active funds are performing much better in comparison to index fund and will perform better till the Indian mutual fund industry fully mature. मतलब मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडेक्स फंड में समझो कि आप 10,000 रुपीज का आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि 1000 से ज्यादा आपको ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए. तो ये पूरा हो गया अपना म्यूचुअल फंड के बारे में. अभी आपके कोई भी डाउट हो तो अपने सॉल्व कर सकते हो. So there are few doubts in the chat box. If you permit, should I take it right now or should we take it after this session ends? नहीं सर मैडम आप ले सकते हो.
Okay, sir. So the first doubt is from Devendra Kumar Poshti, and he says, how much are the expected return in SIP, in Nifty indexed fund, and in normal equity fund? जैसे अभी एवरेज रिटर्न की आप बात करें कि फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, जैसे अभी आज की तारीख में मैं बात करूं, जो मेरे अभी जो भी मेरे साथ इन्वेस्टर है, जो मेरे साथ 2013 या 14 से इन्वेस्टर है, तो आज की तारीख में सबको अगर कोई 2013-14 से भी मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ऑन एन एवरेज 17 या 18% का रिटर्न मिला हुआ है आज की तारीख में। मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, पर ये रिटर्न है, ये रिटर्न फ्यूचर में इतना रहने वाला है नहीं, ये धीरे धीरे इतना रिटर्न कम होगा। रादर अब मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आपको कभी रिटर्न नहीं देखना चाहिए, आपको हमेशा रियल रिटर्न देखना चाहिए। रियल रिटर्न क्या है, अभी मार्केट में आपको फिक्स्ड में कितना रिटर्न मिल रहा है, समझो कि 6% 7% अभी आज की तारीख में फिक्स का रिटर्न है। अगर आपको अभी रिटर्न कितना मिल रहा है, अगर ये 12% रिटर्न मिल रहा है तो 12% माइनस 7%, ये 5% का आपको एक्सेसिव रिटर्न मिला। तो हमेशा कंपैरिजन कैसे करना चाहिए, रियल रिटर्न का करना चाहिए। अगर अभी इंडिया में इंटरेस्ट की साइकिल अभी डाउन चल रही है और आपको रिटर्न इक्विटी में 12-13% भी आज की तारीख में मिल रहा है ना, तो मैं बोलूंगा ये सबसे अच्छा रिटर्न है। क्यों अच्छा रिटर्न है, क्योंकि समझो कि आप कोई लोन लेते हो या वहां पे भी रेट इंटरेस्ट डाउन है और आपको इधर रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो 12% 13% भी रिटर्न अभी गुड है। पर अभी फ्यूचर में जो मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको 12 या 13% से रिटर्न मिलेगा। आप कंपेयर करने जाओ और इंडेक्स की बात करने जाओ तो अगर एक्टिव फंड आपको 12-13% रिटर्न देगा तो इंडेक्स जनरली 2-3% डाउन ही रिटर्न आता है, क्योंकि अभी इंडिया की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड अभी है कि जो पूरा मैच्योर हुआ नहीं है। Okay, thank you so much, sir, for addressing that. Now, Paris Rathod is asking that, sir, from where can we download the fact sheet of one particular mutual fund? जैसे ये मेरा अभी गूगल दिख रहा है आपको? Just a sec, sir. No, sir. It's your PPT that is visible. एक मिनट, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताता हूँ कि आपको फैक्ट शीट कैसे डाउनलोड करनी है। अभी विजिबल है? Yes, sir. अभी जैसे आपको गूगल में सिर्फ इतना लिखना है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट, जैसे मैंने गूगल में लिखा सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। आप कुछ मतलब कोई भी फंड का आपको फैक्ट शीट चाहिए तो ऐसे लिखोगे तो कहीं ना कहीं से ऐसे आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर मैंने एक्सिस में आया तो इधर फैक्ट शीट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे अभी मार्च की फैक्ट शीट अवेलेबल है, अभी जैसे मैं मार्च की फैक्ट शीट डाउनलोड कर लूँ। हाँ, अभी दूसरा क्या है कि आपको वेबसाइट से क्या है कि जनरली 100% पोर्टफोलियो वाली फैक्ट शीट नहीं मिलेगी। कोई कोई फंड हाउस देते हैं, कोई कोई नहीं देते। जैसे आपने देख लिया है पूरी फैक्ट शीट आ गई। अभी इसमें आप देखोगे, अपने कोई भी एक फंड का देखते हैं, इसमें 8 नंबर के पेज पे जैसे ये एक्सिस ने पूरी 100% फैक्ट शीट इधर दी हुई है। जैसे देखोगे कि एक्सिस मिड कैप फंड, तो इसमें सारी कंपनीज आ गई है, आप यहाँ देख सकते हो। कोई कोई फंड हाउस है कि वो पूरी 100% उसकी वेबसाइट पे नहीं करता है, पर आपने समझो कि कोई भी म्यूचुअल फंड लिया है तो क्या होगा कि एवरी मंथ आपको मेल आ ही जाएगा वो फंड हाउस से, और आप वहां पे पूरी एक्सेल शीट, जैसे मैंने एक्सेल शीट अभी ओपन करी हुई है, ऐसी एक्सेल शीट पूरी ओपन हो जाएगी और आपको वहां पे 100% पोर्टफोलियो मिल जाएगा। और ये एक्सेल शीट में आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हो। आप इधर वी लुकअप मार के आप मार्च वाली फैक्ट शीट अभी है तो फेब्रुआरी मंथ से आप वी लुकअप भी मार सकते हो और आप देख सकते हो कि कौन से फंड में उसने वेटेज बढ़ाया है।
कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ से स्टॉक है वो सेल उसने करा है। तो आप बहुत कुछ एनालिसिस कर सकते हो। हर एएमसी आपको एवरी मंथ, अगर आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसे में, तो एवरी मंथ आपको मेल, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल आ ही जाएगा और 100% फैक्ट शीट एक्सेल में आपके पास आ जाएगी। Thank you so much, sir. And sir, Hetwa Joshi wants to know that is small case a good option for investment? अच्छा सवाल है। जैसे स्मॉल केस क्या है कि आज की तारीख में एक बनता जा रहा है, मतलब इतना अभी तक वो भी मैच्योर नहीं हुआ है। स्मॉल केस में क्या है कि एक एफएमसीजी का स्मॉल कैप बना हुआ है। उसमें क्या होता है कि एफएमसीजी की कंपनीज होती है। ये पूरी बात हो गई डायरेक्ट इक्विटी की बात हो गई। मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्ट इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो डेली के आपको 1 आवर तो स्पेंड करना ही करना है। अभी वो कैसे करना है, जनरली लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट लेके बैठ जाते हैं। अभी ये टॉपिक आया है तो मैं थोड़ा और बताता हूँ उसके बारे में। जनरली सब लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसकी बैलेंस शीट खोल के बैठ जाएंगे। अभी बैलेंस शीट देखने का मेरे हिसाब से इतना अभी आज की तारीख में इतना नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट कैसे बनती है, ऑलरेडी कंपनी ने सेल कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनती है। इक्विटी मार्केट में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का प्रोडक्ट का मार्केट एग्जिस्टेंस क्या है, मार्केट में कैसे बिकती है, वो सब प्रोडक्ट रिसर्च जो इन्वेस्टिगेशन जैसे हो गया, वो आपको पूरा करना है। तो आप स्मॉल केस ऐसा आप ले सकते हो, पर मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि अगर डायरेक्ट इक्विटी में आपको करना है तो थॉरली करिए। ऐसे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। Okay, sir. Thank you so much for that. And Kishan Kumar Naran Bhai Patel wants to know if what is the difference between tax saver MF and normal MF? तो उनमें भी क्या है कि ईएलएसएस फंड होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो ईएलएसएस का फुल फॉर्म है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो गवर्नमेंट में एटीसी में जो आपको डिडक्शन लेना है, जिसमें आपका एलआईसी प्रीमियम आ जाता है, हाउस रेंट का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है, तो जो भी पॉलिसी वो आ जाता है, वैसे आप अगर इसमें भी इन्वेस्ट करते हो ईएलएसएस फंड में, तो आपको वही सेम 1,50,000 का बेनिफिट इधर भी मिलता है। पर नॉर्मल फंड में क्या है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो विद इन 1 ईयर आप रिडम्पशन करते हो तो 1% एग्जिट लोड लगता है। और आप नॉर्मल इक्विटी में, नॉर्मल फंड में, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, वो नॉर्मल फंड है, वो ईएलएसएस फंड नहीं है। तो आप अभी पैसे डाले, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, पर विद इन 1 ईयर विड्रॉ करोगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। 1% ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू। समझो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आज की है और आफ्टर मंथ आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो आपका समझो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 है, तो उसमें 1% डिडक्ट होकर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें कोई टाइम लॉकिंग नहीं है। पर सेम चीज अगर आपने ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ईएलएसएस फंड में क्या है कि आपका 3 साल का लॉक इन रहता है। आप 3 साल तक तो उसमें पैसे आप उठा ही नहीं सकते हो। तो ये दोनों डिफरेंस है। जैसे एक्सिस की बात करें तो एक्सिस का ये फंड है जो ईएलएसएस फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। मैं आपको बताता हूँ वो। हाँ, ये एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, वो ईएलएसएस फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन रहता है। बस ये दोनों डिफरेंस है। Next question. Yes, sir. Amam wants to know that, sir, can we invest on the basis of promoter increasing stake in large cap companies? ये भी बहुत लोग ये भी करते हैं कि जैसे प्रमोटर ने इंक्रीज स्टेक किया है, ये है अच्छी बात है कि प्रमोटर भी कंपनी, मतलब प्रमोटर अब खुद के पैसे डाल रही है तो मतलब खुद तो होगा कि वो कंपनी अच्छा करेगी। पर मैं आपको यही बोलूंगा वापस कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो कन्विक्शन पावर आपके पास होना चाहिए। कन्विक्शन किसको बोलते हैं कि जैसे कोई कंपनी आपने 1,000 रुपीज में किसी शेयर को लिया, अभी उसका भाव 700 हो गया, अगर आपके पास कन्विक्शन पावर होगा ना तो आप मोर क्वांटिटी बाय करोगे। क्यों करोगे? कि आपको पता है कि कंपनी का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल का रिसर्च करोगे, आप प्रोडक्ट आप लोगे, वो प्रोडक्ट के बारे में जानोगे, प्रोडक्ट कैसा है, फिर प्रमोटर के बारे में जानोगे, फिर कंपनी की फाइनेंशियल देखोगे, तो आपको अंदर से आ जाएगा कि यार ये 700 आया है, मेरे को तो और लेनी चाहिए। आप जस्ट ऐसी न्यूज के हिसाब से लोगे कि यार प्रमोटर बाय कर रहा है तो मैं भी बाय करूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आज की तारीख में लोग क्या करते हैं कि राकेश झुंझुनवाला ने कोई शेयर लिया तो पब्लिक उसको भी बाय करती है, पर वो जरूरी नहीं है। राकेश झुंझुनवाला के पास तो 15,000 20,000 करोड़ रुपया है,
अगर उसके 100 करोड़ 200 करोड़ यूं से यूं हो जाएगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो पॉसिबल नहीं है। अभी दूसरी बात भी बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला है, उसका 15,000 का, 15 नहीं 20,000 करोड़ के आसपास आज की मार्केट वैल्यू होगी। आप देखोगे उसमें एक ही स्टॉक है जिसका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अप्रोक्स 8,000 या 9,000 करोड़, जिसका नाम है टाइटन। तो आप देखोगे कि इतना उसने पैसे कमाए है, कहाँ से कमाए है? कोई एक उसने स्टॉक आइडेंटिफाई करा है जिसमें वो फोकस रहा है, उसको कन्विक्शन है कि उसको पता है कि स्टॉक का वैल्यू इतना होगा, उसको कन्विक्शन है, तो उसने क्या किया, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय कर ली। तो मैं वही डायरेक्ट इक्विटी में यही है कि डायरेक्ट इक्विटी में आप जैसे ही कन्विक्शन पावर ऐसा रिसर्च करोगे और 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओगे और उसमें क्वांटिटी बिल्डअप करोगे अपने हिसाब से, तो ही आपके पैसे बनेंगे। ऐसी न्यूज के हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा कि मतलब जो है, मतलब आपको, मेरा टारगेट है कि सबका मतलब वेल्थ इतना बने, वो इसमें इतना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा कि आप लोगे, फिर थोड़ा बढ़ेगा, बेचोगे, दूसरा लोगे, तो वो आई थिंक टाइम ही आपका वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। Okay, so thank you so much for addressing that. And next up, Kalash is asking, is SIP better or one-time investment better in MM? देखिए SIP ही बेस्ट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो यही टाइमिंग वाली बात आ जाएगी वापस। क्या होगा कि आज मार्केट ज्यादा है, अगर मार्केट टूटेगा तो आपको ऐसा लगेगा मार्केट और टूटेगा और आप वेट ही करते रह जाओगे। इससे अच्छा आप SIP करिए, जिसमें क्या है कि हर बेनिफिट मिल जाएगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप डाउन में डालोगे फिर अप हो जाएगा। SIP करोगे तो ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न बनता ही जाएगा। तो SIP करिए। एक ऐसा फंड रखिए आप थोड़ा बहुत कि समझो कि कभी 1000, जैसे अभी लास्ट फ्राइडे 800-900 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो ऐसा कभी लगे तो तब आप थोड़ा फंड रखिए और एक साथ डाल दीजिए। पर SIP सबकी होनी कंपलसरी चाहिए। अभी मैं कुछ मेरे मेरे बारे में बताता हूँ। मैं इतना रिसर्च भी करता हूँ, फिर भी आज की तारीख में मैं अगर 100 रुपये मेरे को इक्विटी में डालना है तो मैं 50 रुपीज का मैं कंपलसरी SIP करता हूँ। आज की तारीख में भी SIP ही करता हूँ। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि एक SIP तो आपको कंटिन्यू रखनी है। Thank you so much for sharing your personal experience, sir, as well. Now, I think that I have covered all the doubts. Okay, there is one more popping up. Just a sec, sir. Okay, so Shobit is asking, sir, which type of mutual fund would you recommend in this crucial times? मैं नाम अभी नहीं दे सकता हूँ आपको म्यूचुअल फंड के इस सेमिनार में, पर आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपकी एज अभी 20 ईयर्स है, आप कोई भी मिड कैप फंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए। एक होना चाहिए लार्ज कैप फंड, एक होना चाहिए मिड कैप फंड, और एक होना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3 फंड, और कोई फंड ज्यादा नहीं लेने आपको। अच्छा सा फंड एक आइडेंटिफाई करिए और 3 ही फंड रखिए आपके पोर्टफोलियो में। कोई 10 फंड या 15 फंड वाली गेम मत करिए। 3 या 4 फंड बहुत हो गए। अगर मैं तो बोलूँ आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का भी हो ना, तो 5 से ज्यादा फंड तो आपके पोर्टफोलियो में होने ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस है ना एकदम इजीली हो जाएगा, आप जल्दी से एनालिसिस कर पाओगे। मैं इतना क्लाइंट का अभी मेरे पास आते हैं, कोई भी नए क्लाइंट आते हैं तो मैं देखता हूँ उनके पास उसकी मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 25 लाख रुपया, और उसमें 25 फंड होते हैं। अभी 25 लाख में 25 फंड को रिव्यू करना कितना भारी है। तो कभी भी पूरा फंड, पूरा आपका इक्विटी का भी पूरा पोर्टफोलियो एक पेज से ज्यादा मत करिए। एक ही पेज में पूरा आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा। सिंपल रखिए। तो जैसे मैंने बोला कि ये इतने फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो सही रहेगा। और मैंने आपको पूरा बताया कि 5,000 से 10,000 वाला मार्केट कैप वाला फंड आइडेंटिफाई करिए, उसमें आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। Thank you so much, sir. Sir, people are asking, your PPT is very much helpful for them. Can you please share it? हाँ, ये PPT मैं राहुल जी को दे दूंगा, फिर वो शेयर कर लेंगे। Yeah, thank you so much, sir, for such a great session on mutual funds till now. And yes, if anyone is having any query regarding mutual funds as of now, you may raise it in the chat box. Okay. Or if in case, if I have missed any query by chance, you may just repost it. अभी बोलूं मैडम मैं कुछ? Yes, sir, for sure.
ओके, अभी जैसे राहुल जी ने बोला था कि 1000 करोड़ वाला जो रामदेव अग्रवाल है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी उन्होंने 1000 करोड़ बनाया है। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी एज अभी 20 ईयर्स है और आप प्रॉपरली थॉरली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, मैं ये बोलूंगा कि अगर 2050 के आसपास आप भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा बना सकते हो। एक ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है ये कि कोई भी इंसान इसमें आना, मतलब कोई कुछ भी नहीं है आपके पास पैसे, फिर भी आप इसमें आना करोड़पति बन सकते हो एकदम। सर, मुंह पे घी शक्कर, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इन्वेस्ट एज मैं मच आपको बताता हूँ, खाली एक चीज रखना है आपने, एक तो थॉरली स्टडी करना है, खाली सिर्फ मेहनत करनी है, बरोबर है आपको जो। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं क्लियर आपको बताता हूँ। आप म्यूचुअल फंड अकेले करोगे तो 1000 करोड़ पॉसिबल नहीं है। समझो कि आप लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हो, लाख नहीं, ऑन 50,000 का आप इन्वेस्टमेंट करते हो फ्रॉम बिगिनिंग 20 ईयर्स से, जो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। 50,000 का 2020 के साल में आप अभी सब स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट में 50,000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 12% का भी ग्रोथ साइकिल मानूं आपका, कि अगर मानता हूं कि मैं आपको 12% का रिटर्न मिलने वाला है, तो क्या होगा 2050 में आप कितना पैसा बना सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 17 करोड़ 64 लाख। अभी ये तो 50,000 में 2020 से कर रहा हूँ। आप जब सीए बनोगे तब होगा 2022-23 के आसपास आप सीए बनोगे। आपकी सैलरी तब स्टार्टिंग मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 60-70,000 की एवरेज सैलरी में मानता हूँ। तो पॉसिबल नहीं है आपके भी 50,000 का आप इन्वेस्ट करोगे। अब म्यूचुअल फंड में आप मेरे हिसाब से 12% 13% से ज्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो फ्यूचर में। तो देखो आप 2060 तक भी आप करोगे ना अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट, तो भी आपकी वैल्यू 59 से मतलब ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास होती है। अभी बात हो रही है 1000 करोड़ की, तो ये पॉसिबल नहीं है अकेले म्यूचुअल फंड से। आपको क्या करना है, कंपलसरी आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इक्विटी में वैसे वैसे शेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपको CAGR 25% प्लस ग्रोथ देंगे। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर ये 50,000 ही है, अगर आप 25% में करता हूँ ना, तब जाके बात बनती है। आप देखो कितना वैल्यू आता है आपके 60 ईयर्स में, मार्च 60 में 486 करोड़। तो एक पूरी गेम में क्या है, देखो पैसे अपने पास लिमिटेड है, पैसे नहीं है, बरोबर है, अपने पास टाइम नहीं है, लिमिटेड है। अपने पास क्या है, अपने पास है रिटर्न, जो अपने हाथ में है। आप करो वैसा कर सकते हो। आप ऐसा भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 33% वाले रिटर्न, मेरे पास ऐसा स्टॉक भी है कि जिसने उसके बिगिनिंग से 30% का रिटर्न दिया हुआ है। अभी ये चीज आपके हाथ में है, तो आपको क्या करना है। but the Excel sheet is not visible right now ओके ओके ओके, as of now. नाउ इज विजिबल। Yeah, sir. Thank you so much. ओके, तो अभी क्या, हाँ, जैसे आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो और 25% का रिटर्न आप अर्न करते हो, तब जाके आपके 500 करोड़ बनते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि अपने पास क्या है, अपने पास सिर्फ रिटर्न ही है जो अपने हाथ में है, बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं है। पैसे भी अपने अपने कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, पर आपको रिटर्न गेन करना है, जो आपको डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट करके ही आ सकता है। तो जैसे मैंने पूरा बताया कि आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो दो ही, एक तो खुद रिसर्च करिए, या तो अच्छे से अच्छा कोई कंसल्टेंट हायर करिए, उसके बेसिस उसके रिकमेंडेशन से आप इन्वेस्ट करिए। Thank you so much, sir, for that. That piece of advice is very useful. And Shohit further wants to know that, sir, on analyzing the funds since 1 year, I have seen that growth in small cap funds is slightly higher than both mid cap and large cap funds. The analysis is post-COVID. What could be the reason of that? Can you repeat the questions? Yes, sir, on analyzing the funds since 1 year, I have been seeing that growth in small cap is slightly higher than both mid cap and large cap funds. देखो The स्मॉल कैप, analysis is post-COVID. So what could be the reasons for this, sir? मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल कैप फंड मतलब स्मॉल कैप स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अभी इसमें क्या होता है कि स्मॉल कैप का एक पर्टिकुलर पीरियड आता है। अभी यही अगर ये 2-3 साल पहले या अगर ये होते ना, तो स्मॉल कैप में कुछ रिटर्न ही नहीं था।
कभी 5 साल के बाद साइकिल आती है, कभी 7 साल के बाद साइकिल आती है, कि जब क्या होता है कि इकोनॉमी अच्छी खासी बूम करती है ना, तब स्मॉल कैप का टाइम आता है। मतलब छोटी छोटी कंपनीज क्या है कि उसका प्रॉफिट बढ़ता है, और स्मॉल कैप कंपनीज में जनरली क्या है कि पैसे एक साल में डबल ही ट्रिपल ही होते हैं, और वो कब आएगा टाइम किसी को पता नहीं है। और ऐसा भी होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में वो जल्दी मतलब चली भी जाती है, मतलब आज आई कल गायब भी हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या है कि इतना इतना मैनेजमेंट पे ट्रस्ट और कंपनी के मतलब इतना ट्रस्ट अपने जनरली नहीं कर सकते। तो अभी क्या हुआ है कि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। इसके कारण क्या है कि वो कंपनी के भाव बहुत बड़े, इसके कारण आपके स्मॉल कैप का रिटर्न है ना मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा आता है। मैं अभी भी बोलूंगा कि मैं स्मॉल कैप को इतना रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, क्योंकि क्या है कि स्मॉल कैप में ऐसी कंपनीज भी होती है कि अपने को कुछ आइडिया नहीं आ सकता, उसके फंड उसके प्रमोटर के बारे की उसकी इंटीग्रिटी भी अपने इतना जल्दी समझ नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि आपको वेट बहुत ज्यादा भी करना पड़ सकता है, और ऐसा भी है कि आपको मतलब जो नुकसान है वो भी ज्यादा, लॉस भी ज्यादा इसमें आ सकता है। तो आप मिड कैप तक ही रहिए, लार्ज कैप, मिड कैप यानी फ्लेक्सी कैप, ये 3 तक आप रहिए। Yes, sir. Thank you so much for that. And Amam wants to know, sir, can you please recommend any book or course for research in equity? देखो मैं फ्रेंकली बताता हूँ, मैंने भी कोई बुक पढ़ी नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप घर से निकलते हो ना तो जस्ट ऑब्जर्व करिए, और आपके पास अभी सबसे बड़ा टूल है। हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छी कंपनीज। आपके पास सबसे बड़ा टूल है कि यूट्यूब। आपके दिमाग में कुछ भी आता है ना, यूट्यूब में डालिए, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उसका आंसर। और दूसरा है ऑब्जर्विंग, आपको ऑब्जर्व करते रहना पूरे दिन में, घर से निकलो तब से आपका ऑब्जर्विंग चालू रहना चाहिए। घर से निकले बरोबर, एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी के टायर के नाम पढ़िए, कौन सी कंपनी का टायर लगा हुआ है, बरोबर है। जैसे मैंने अभी भी टी शर्ट पहनी हुई है, वो भी एक कंपनी की है। मतलब मेरा कैसा है कि आप पूरा मेरे को भी देख लोगे ना तो सारी कंपनी के नाम मिल जाएंगे कि कौन सी कंपनी मेरे पास है। तो एक ऑब्जर्विंग वाला है ना, उसकी प्रोडक्ट यूज करिए। कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अच्छी बड़ी कंपनी है बरोबर, वो नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसकी प्रोडक्ट आप यूज करिए। आप देखिए कि ये प्रोडक्ट आपको क्या, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि प्रोडक्ट अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो ये चीज है, ऑब्जर्विंग है। और यूट्यूब, समझो कि कोई भी प्रोडक्ट आई है तो यूट्यूब में डालिए ना। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में कितनी सारी दवाई आती करती, कभी नाम पढ़ो ना कंपनी के, बरोबर। ये लिम्सी आती है, लिम्सी कंपनी, लिम्सी कितनी प्रोडक्ट बिक रही है आज की तारीख में, लिम्सी का नाम पढ़िए कभी, कौन सी कंपनी है वो, कंपनी का नाम है एवोर्ड, उसका भाव है 15,000 रुपया पर शेयर का, और यही एवोर्ड आपको 10 साल पहले 1,500 रुपये में भी मिलता था। तो आप ऐसे रिसर्च कर सकते हो। आप कोई किसी की बुक पढ़ के क्या कुछ उसमें आपको कोई स्टॉक के नाम, हाँ कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई ये स्टॉक है तू ले ले इतने भाव आने वाला है, इससे कन्विक्शन नहीं आएगा आपको कभी भी। आपको क्या है कि इक्विटी में कन्विक्शन जरूरी है। कन्विक्शन कैसे आएगा, अगर आपने खुद आपने रिसर्च करी है तो कन्विक्शन आता है कि यार ये तो प्रोडक्ट मतलब ये भाव अगर आधा हो जाता है तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पता है यार प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, इतनी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इतनी एक्सेप्टेबल है, कैसे प्रॉब्लम आएगा कंपनी को। तो ये हो गया पहले ये। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट को पढ़िए, मैनेजमेंट का कैसा है। अगर इतने कुछ जैसे कैसे पता चल सकता है, उसकी टेस्ट आपको खुद लेनी है। जैसे कोई कंपनी है उसने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, तो सेबी में तो देना पड़ता है कि इसने प्रॉपर्टी सेल करी, उसने इतने पैसे आए, उससे नंबर ऑफ कैपिटल से आप डिवाइड करिए तो क्या आता है, पर कैपिटल कुछ आता है उसको, इतना पर कैपिटल कितना पैसा आता है, मतलब कोई शेयर होल्डर है तो उसके बाद में कितने पैसे आते हैं। तो आप देखिए कि कंपनी आने वाले समय में कुछ डिविडेंड अनाउंस कर रही है, क्या वो पैसे का कर क्या रही है, वो कैपिटल इतना बड़ा फिक्स असेट बेचने के बाद वो पैसे का कर क्या रही है वो। उससे आपको इंटीग्रिटी पता चलेगी कि कंपनी ने पैसे मतलब शेयर होल्डर को दिए है क्या, फिर कुछ ना कुछ उसने एडजस्टमेंट करा है वो पैसे को। ये सब आप करिए। मार्च महीने के सेल्स दिखे खाली कि मार्च महीने में सेल्स ज्यादा आता है खाली और पूरे साल में कुछ नहीं आता है, मतलब ये सब आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करे सबसे पहले ये चेक करिए कि कंपनी में डेट कितना है। हमेशा जीरो डेट कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, कभी भी जीरो पैसे भी डेट नहीं चलाना है। कोई भी कंपनी आप बाय करो जीरो डेट होनी चाहिए। अभी ये सब आप मैं पॉइंट्स बताए, आप इसको फॉलो करोगे ना तो गारंटी मतलब आपको अच्छी खासी कंपनी आ जाएगी, और नॉर्मल आपको 25% से ज्यादा रिटर्न देके जाएगी वो कंपनी। तो जो 1,000 करोड़ वाली बात है ना, ये जो रामदेव अग्रवाल साहब ये सबने यही किया है, ये पूरे फोकस ही रहा है अपने पोर्टफोलियो पे। आप देखो उसने कितना वेट करा होगा तब जाके उसके 1,000 करोड़ रुपीस बने। उसमें बीच में क्या 500 करोड़ बने, तब उसको नहीं लगा यार 500 हो गए मेरे तो इतने सारे पैसों के लाभ बेच देता हूँ, नहीं बन उसने वेट किया। उसको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट,
उसको पता है कि एक टाइम के बाद मेरे पैसे कितने होने चाहिए। इधर आप कहीं पे भी मतलब ये भी एक पेशेंस लेवल भी टेस्ट होता है इधर आपका। Yes, sir. Thank you so much. And yes, patientness is the key for holding any stock or being in or holding any mutual funds or SIPs out there. So, sir, I think that yes, there is one question from Kushal. Okay, so can you please recommend any YouTube channel to learn stock market and mutual fund from ground level? मैडम जैसे मैंने कोई कंपनी, उसमें कोई यूट्यूब की कोई चैनल नहीं है, उसके बारे में आपको प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है यूट्यूब में, ना कि कोई आएगा और वो भी जैसे कोई बताएगा वैसे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इक्विटी में कभी भी। जैसे मैंने लास्ट आर्टिकल इंस्टीट्यूट में भी लिखा था, तो मैंने पूरा टायर कंपनी में जो मैंने रिसर्च किया था वही मैंने आर्टिकल में लिखा हुआ है लास्ट मंथ का आर्टिकल में। जैसे कोई टायर कंपनी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई टायर कंपनी आइडेंटिफाई करी है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, वो टायर को मैं रेगुलरली ऑब्जर्व करो कि ये टायर मतलब जो भी नई नई कार आ रही है उसमें आ रहे हैं कि नहीं है कंपनी के टायर। फिर टायर के बारे में नॉलेज गेन करो यूट्यूब में डाल के, तो कोई टायर एक्सपर्ट आएगा वो बताएगा कि टायर कैसे होने चाहिए, टायर की ग्रिप इतनी होनी चाहिए। फिर वो टायर के का ओपिनियन लो कस्टमर से, आप डालोगे तो आपको तुरंत बहुत सारे मतलब लिंक मिलते ही जाएंगे। हाँ ये टायर अच्छा था, इतने किलोमीटर गाड़ी चलती है टायर पे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा कोई यूट्यूब की कोई चैनल नहीं है, आपके दिमाग को मतलब थोड़ा वो करना है और आपको थिंक करना है कि क्या होना चाहिए, तो आप डालो यूट्यूब पे, तो कुछ ना कुछ तो मिलता है यूट्यूब पे। Yes, sir, agreed. And thank you so much. You all have been so curious, audience. This shows us your activeness and awareness regarding this webinar. And if you do have any more questions regarding mutual funds, you may ask it, or otherwise I may ask so to proceed. Okay, so it seems that we are almost done with the doubts relating to mutual funds. Let's proceed further. ओके, मेरा कंप्लीट हो गया सर। Hello. मेरा कंप्लीट हो गया सर। Okay, sir. Sir. Okay, fine, sir. Thank you so much for that. And can you please add on to mutual funds as in you are not revealing the name of the company, and I know for the code of ethics also we can't just, but I do have a personal thing regarding stock market. I have a share, and sorry, I'm going to name it. It's Sanvaria, and it's a penny stock company. So it's currently in the liquidation process as of now. Sir, can you just let me know, should I invest further in it? Should I hold upon, or what should I do? I'm basically confused. तुरंत ही कल जाके जैसे मार्केट ओपन होता है आप तुरंत को बेच दीजिए पेनी स्टॉक। और जो भी पैसे आते हैं ना, कोई अच्छी से अगर आपके पास अगर एनालिसिस नहीं हो तो मैं तो बोलूंगा तुरंत आप ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। Okay, sir. Thanks for that. तो इक्विटी में कैसा है कि एक बार है ना, जनरली मैंने देखा हुआ है जो कंपनी है जो अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, तो पब्लिक क्या करती है, थोड़ा प्रॉफिट मिलता है और निकल जाती है। और जो कंपनी अच्छा खासा काम नहीं करती है, उसका शेयर का भाव डाउन होता है तो वो उसको होल्ड करती है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, अच्छे शेयर चले जाते हैं और जो भी रहता है मतलब जो लॉस मेकिंग है वो वाला क्वांटिटी अपना इनकम वो सब रह जाता है। तो ऐसा इक्विटी में कभी भी नहीं करना है। आपको लगता है कि कंपनी में कुछ है नहीं, बैलेंस शीट में भी कुछ है नहीं, तो आपको स्ट्रेट अवे उसको तो बेच ही देना है। Okay, sir. So Monday morning I will be out therein, and yes, sir. We do have more questions popping up. So yeah, Paras says, sir, can you please recommend ratios for identification of mutual funds?
देखो इसमें म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई रेशियोज नहीं है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने मेरी पीपीटी में आप देखोगे कि आपको क्या रखना है कि कोई भी फंड आपको लेना है तो इसका आप एक एयूएम देख सकते हो, उसका फंड मैनेजर देख सकते हो कि ये फंड को कितने साल से मैनेज एक्टिवली कर रहा है। अब और दूसरा जो स्टॉक्स उसके जो इन्वेस्ट करे वो कंपनीज कैसी है। ऑलमोस्ट आपको लगता है कि जैसे एचडीएफसी बैंक सबको पता है, रिलायंस भी सबको पता है, जैसे आपकी नॉन कंपनीज है कि नहीं, अब उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। ऐसा कोई रेशियोज नहीं है। हाँ रेशियोज होते हैं इसमें, जैसे जैसे शार्प रेशियोज ना, वो सब रिस्क के सब रेशियोज होते हैं, पर जनरली मेरे हिसाब से वो रेशियोज भी क्या है कि वो परफॉर्म होने के बाद बनते हैं रेशियोज। अपने को तो फ्यूचर का करने का है। अभी म्यूचुअल फंड में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि जो हो गया वो रिपीट होने वाले है। जैसे अभी एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात बताऊं, अभी जिसमें एचडीएफसी है, बजाज है, इन्फोसिस है, ऐसे आप कंपनीज के नाम देखते जाओ, आपको जनरली ऐसी कंपनीज मिलेगी कि आपने मतलब कहीं ना कहीं तो सबके नाम आपको आइडिया आ ही जाएंगे कि अच्छी कंपनी है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो। Yes, sir. We will definitely और do. दूसरा, हाँ एक एक एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम ना उतना रिटर्न ज्यादा हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो जनरली क्या है कि आप जो इन्वेस्ट करते हो उतने पैसे आपके कट हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कट हुए, वो एडजस्ट हो जाते हैं आपके रिटर्न में। जैसे किसी का 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो आप अगर फंड ने 12% रिटर्न दिया है तो इसका मतलब क्या है, फंड ने 13% दिया है रिटर्न, 1% तो वो लेके गया एक्सपेंस रेशियो एज ए फीस देने के लिए। तो जिसका भी एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर Yes. मैं यही बोलूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को कि जल्द से जल्द, अच्छा है कि राहुल जी ने इतना अच्छा सेमिनार कराया कि जनरली क्या है कि मेरे भी जितने भी क्लाइंट है ना, ऑन एन एवरेज है ना 30 साल के बाद सब इन्वेस्ट करते हैं। 2020 में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने भी 2000 मतलब मैं जब सीए बना 22 साल के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। मेरे को लग रहा है कि मैं 3-4 साल लेट हो गया हूँ, मेरे को आज भी तारीख में लग रहा है। जो आप नहीं करो, आप जल्द से जल्द इक्विटी में एटलीस्ट कल जाके एक म्यूचुअल फंड तो रजिस्टर कर दीजिए। अच्छा कोई भी देखिए आपको मिल जाएगा, मैं नाम एक्चुअली नहीं कर सकता हूँ, आप मिल जाएगा आपको अच्छा से अच्छा फंड। आप थोड़ा रिसर्च करिए, 1 घंटा स्पेंड करिए आज। और आज की तारीख में क्या है, म्यूचुअल फंड इतना इजी हो गया ना, ऑनलाइन हो गया ना, मतलब बाय करना है, एसआईपी रजिस्टर करना। पहले तो फॉर्म से होता था तो बहुत डिफिकल्ट था, आज तो बहुत इजी है। तो आप जल्द से जल्द, मैं तो बोलूंगा कि 1000 रुपीज से आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। और Yes. इससे क्या होगा कि 3-4 साल आप करोगे, फिर क्या होगा कि आप इक्विटी से आपको आइडिया आ जाएगा कि यार इक्विटी मार्केट एक्चुअली है क्या, इक्विटी है क्या। उससे आपको धीरे 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 करके गेन आएगा, फिर आप डायरेक्ट में आइए, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आइए। और एक बनाइए, पहले तो क्या है कि एक अमाउंट भी डिसाइड करिए कि इतना पैसा आप इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने सबसे पहले बोला था लाइन में कि अभी चेंज हो रहा है थीम कि पहले टोटल इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट फिर एक्सपेंस, वो सबसे बेस्ट है। जनरली कोई करता नहीं है, जनरली सब लोग क्या करते हैं कि पहले इनकम आती है फिर खर्चा कर लेते हैं, जो बचता है तो इन्वेस्ट करते हैं। मैं मेरे यही होता है, और मैं किसी को पूछता हूँ कि ऐसा क्यों करता है तो बोले कि ज्यादा खर्चा करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। ये सब बोलने की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, एक बनाइए, एक कॉर्पस बनाइए। जैसे कि आपकी इनकम समझो कि 10,000 रुपीज अभी कहीं से कहीं ना अरेंज होता है, बरोबर है, 10,000 रुपीज। तो पहले क्या करिए कि 2-3 हजार रुपए थोड़े है ना बैंक में रखिए। इसमें भी ये भी है कि इसको आप डिस्टर्ब नहीं करना है। ये इन्वेस्टमेंट कर दिया बरोबर है, पर इमरजेंसी फंड ही क्रिएट नहीं करा तो क्या होगा, ये कभी ना कभी डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपके पास, तो आप क्या करोगे, इसमें से रिडीम करोगे पैसे। पर ये भी नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, कॉर्पस बनाना है थोड़ा बहुत, कि कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो मैं वो पैसे बैंक में पड़े हो तो उससे यूज करूँ, जिससे मेरा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब ना हो। तो ये करिए। और दूसरा एक थंब रूल है कि 100 माइनस आपकी एज कर देने की, उतने पैसे कभी भी हो ना इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। जैसे आपकी एज 20 ईयर्स है, तो 100 - 20 तो 80%। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना कहीं तो 80% पैसे कंपलसरी आपके इक्विटी में जाने चाहिए। ये थंब रूल है, ये 100 का थंब रूल है। तो आपको ये रखना ही है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसे आपको करना ही है। Thank you so much for such a precious advice, sir. I hope we all are going to follow it from today, from now onwards. Okay, now we have Kalash asking, what about Kalyan Jewellers share? Your view reviews, sir. मैडम मैं ऐसे एक पर्टिकुलर शेयर्स पे ऐसे एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। और एक्चुअली मैं सही बोलूँ, मैंने कुछ इतना रिसर्च भी नहीं किया है। मैं भी पूरा फोकस ओरिएंटेड पूरा स्टडी है मेरा मेरा भी 20-25 शेयर का फोकस रहता है। ऐसे देखो हर दिन हर कंपनी आ जाएगी, बहुत सारी कंपनी है। अभी आप कैसे इतना मतलब
इतना रिसर्च कैसे कर पाओगे? तो खुद ये तो मैं इसमें ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स कैसा है। एक्चुअली मैंने पढ़ा भी नहीं है उसके बारे में, फ्रैंकली बोलूँ तो ऐसे मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। पर मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आप उसका डेट लेवल देखिए, आपको लग रहा है कि डेट लेवल बहुत ज्यादा है तो आप बेझिझक करना, मैं तो मुंह निकल जाइए। अगर डेट है तो क्या करोगे आप? आपके पैसे है, आप समझो कि कोई कोई इंसान मतलब कोई डेट में आप कैसे पैसे डाल सकते हो? कंपनी के में डेट है तो कैसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मैं पैसे क्यों दूँ वो कंपनी को कि उसके पास इतना तो डेट है। अभी उसका रिसेंटली उसका आईपीओ आया है, तो आप देखिए ना आईपीओ में उसने पैसे का करा क्या है। उसने ऑब्जेक्ट में लिखा होगा कि क्या क्या करने का है मेरे को, उसने शोरूम्स खोलने के किसके लिए उसने तो पैसे पहले तो लिए, उसका डेट रिडक्शन के लिए पैसे लिए है कि किसके लिए लिए। तो ये थोड़ा आप पढ़िए, उसके हिसाब से आप मतलब आपका डिसीजन लीजिए। Yes, sir, can you just give us a quick recap or something related to fundamental analysis? Like 2 मिनट में पहचान लिया कि बस यही है खरीदने वाला 2 स्टॉक। मिनट में मैडम कुछ नहीं होगा इसमें, इक्विटी मार्केट में 2 मिनट में कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 मिनट में तो क्या कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं। मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ऑब्जर्विंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी अभी आज से कर लो कि कोई भी चीज लाते हो सबसे पहले पीछे पढ़ के नाम देखिए कि कौन सी कंपनी की चीज है। कोई भी चीज लाते हो आप घर पे, तो समझो कि आप पूरे दिन जाते हो तो कुछ ना कुछ कोई चीज लाते ही होगे। हॉर्लिक्स ला मतलब हॉर्लिक्स लाया तो आप पढ़ो पीछे कौन सी कंपनी है ये। फार्मा की दवाई लाते हो तो पीछे पढ़ो कि कौन सी कंपनी की दवाई मैं यूज कर रहा हूँ ये। तो Okay. इससे क्या होगा, नाम मिल जाएगा आपको कंपनी का, फिर नाम देख के उसको डालिए गूगल में, कंपनी की वेबसाइट देखिए पूरी, कंपनी क्या कर रही है, बरोबर है। फिर उसके बाद उसका देखिए उसकी प्रोडक्ट सारी दूसरी सारी भी प्रोडक्ट देखिए, फिर जाके आप ना फंडामेंटल पे आइए। फिर देखिए कि कंपनी जीरो डेट है कि नहीं। सबसे पहले तो क्या देखना है, बैलेंस शीट खोल के उसका डेट लेवल देखना है, जीरो डेट है कि नहीं है वो। क्योंकि क्या है कि सारा प्रॉब्लम है ना डेट से ही आता है। अभी समझो कि डेट लेवल है मेरा, अभी मेरी समझो कि कैश क्रेडिट चल रही है, तो क्या करना पड़ता है मेरे को, मंथली क्या सेल्स की डिटेल देनी पड़ती है उसको, इन्वेंट्री की डिटेल देनी पड़ेगी। अब मेरी लिमिट चल रही है बैंक में, लोन चल रही है, तो मेरे को क्या सेल्स की फिगर देनी पड़ेगी। किसी दिन मेरा सेल्स कम हुआ, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो क्या होगा अब बताओ, सेल्स में एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? कंपनी क्या करेगी, मेरा सेल्स इन्फ्लेट एकदम इन्फ्लेट कर देगी, ज्यादा बताएगी, जो गलत है, एकदम गलत है। सबसे स्टार्टिंग कंपनी का डाउन जाने वाला सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है कि डेट लेवल। जिस दिन कंपनी में डेट आया ना तब से तुम्हारा सब गलत काम चालू कर देते हैं कंपनी, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। बैंक पैसा कब देगी, जब जाके उसका सेल्स बढ़ता जाएगा, तब जाके बैंक उसको देने वाली है सेल्स। प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ता है, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट आती है पीएनएल में। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। Yes, sir, for sure. We will definitely observe it. And Amam says, what is the indicator for selling the stock? इंडिकेटर ऑफ द सेलिंग द स्टॉक, ऐसा कोई इवेंट आ गया आपको लगा कि यार कंपनी ने तो गलत करा, वो कैसे, वो कन्विक्शन से ही आएगा आपको। अब इतना कंपनी कोई भी आइडेंटिफाई करो, इतना अंदर इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कंपनी के मैनेजमेंट ने गलत कर दिया। खुद तो ऐसा हिंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो हिंट कैसे मिलेगा, अगर आपकी स्टडी होगी तो ही हिंट मिलेगा आपको। कुछ आ गया, ऐसा न्यूज आ गया कि आपको लग रहा है कि यार ये तो मेंबर शेयर होल्डर के लिए तो सही नहीं है, ये इसने डिसीजन तो गलत लिया है, तो आपको तुरंत हिंट पता चल जाएगा। और दूसरा, कोई साइकिल चेंज हो रही है, समझो कि अभी कोई कंपनी है ऑयल बना रही है, 4 व्हीलर के 2 व्हीलर के ऑयल बना रही है। अभी फ्यूचर में देखो आने वाले 10 साल के बाद तो इलेक्ट्रिक का ही जमाना है, तो अभी ऑयल का क्या करेंगे अपने? अभी ऑयल फ्री इंडस्ट्री में जाएगा, 4 व्हीलर में तो जाएगा नहीं ऑयल। तो ऐसा आपको हिंट मिल जाएगा जैसे साइकिल चेंज होने वाली है, तो वो सब स्टॉक से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। Okay, sir. Okay. So next up, yes, Ketwa Joshi is asking, sir, what is your opinion regarding Zomato's IPO? It's good to buy. देखो ये तो फ्यूचर तो है इंडिया का, ये सब ऑनलाइन वाला। अभी तो आईपीओ का तो कुछ आया भी नहीं है डिटेल, कितने में दे रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो कितने प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। तो ये टाइम पे तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ कि जोमेटो का आईपीओ आएगा तो वो अच्छा है कि नहीं है, ऐसा कुछ ऐसे भी नहीं बता सकता हूँ। और अभी तो कुछ डेटा भी नहीं है उसका। हाँ पर है, फ्यूचर है ऑनलाइन बिजनेस का, इंडिया में फ्यूचर बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी तो मतलब कोई सिटी एरिया में ही इतना पेनेट्रेशन इन लोगों का इतना कम है, अभी सिटी एरिया में भी बहुत लोग पब्लिक अभी यूज इतना नहीं कर रही है। तो
तो आप सोचिए रूरल में जाएगा तो क्या होगा ये सब बिजनेस का, मतलब बहुत बड़े बिजनेस होने वाले हैं फ्यूचर में। Yes, sir. And Kushal wants to know, sir, can you please explain in short how to purchase mutual funds online through which online platform? बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल है। मैं तो बोलूंगा कि जो फंड ले, हाँ केम्स करके आता है एप्लीकेशन, एक के फिनकार्ट आता है। जैसे केम्स में कोई फंड एएमसी है और के फिनकार्ट में थोड़ी बहुत एएमसी है। जैसे कोटक का म्यूचुअल फंड लेना है तो आपको केम्स में ही जाना पड़ेगा, CAMS कैम्स। उसमें आपको सारी डिटेल डालनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपको गाइड करते जाएंगे। और अगर आपको एक्सिस का फिर मिरे का दूसरी एम से लेनी है तो के फिनकार्ट से भी आप ले सकते हो। या दूसरा कुछ भी ना सूझे तो आपके जो भी कंपनी का आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाइए और वहां से इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। Okay, sir. Thank you for that. That was the basic step instead, and thanks for clearing it out. Amam wants to know, sir, should we buy unlisted companies, for example, HDB, which is going to be listed later? तो सब में क्यों पढ़ रहे हो आप अभी? अभी इतनी सारी कंपनीज है, इधर ही लिस्टेड है ऑलरेडी है, जो अपने को पता है इतने भाव आने वाले हैं। अभी इसमें फोकस आप करिए, वो ही बेटर रहेगा। वो सब अनलिस्टेड कंपनीज में तो अभी तो वो सब नहीं करना चाहिए अभी। Okay. पता भी नहीं कि सही है कि गलत है, आपको शेयर्स मिलने वाले, वो फ्रॉड भी कुछ भी हो सकता है अपने पास। तो ऑलरेडी जो लिस्टेड है, इससे अच्छा HDFC लिमिटेड ही है ना, उसकी पेरेंट कंपनी, उससे ले लीजिए, उसको ले लीजिए आप, वही बेस्ट रहेगा। Yes, sir. Definitely. And Tejas wants to know, sir, what is the difference between mutual fund and alternative investment fund? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट AIF. मेरे को आइडिया नहीं है, ये मेरे को आइडिया नहीं। Okay. And are there any questions apart from these which are left from addressing? Till then, I would like to thank you, sir. Sir, thank you so much for sparing your precious time out for us. And thanks to the audience also who have been so interactive and asking questions and clearing their doubts. And sir, you are so very capable that you are spontaneously answering all the doubts. Like, you know them like from the ages. And sir, thank you for joining us for this particular event. And we do have Dihana Chandrani to address word of thanks to you. Dihana, over to you. Dihana, you are not audible as of now. Thank you, Jocelyn. Am I audible now? Yeah, you are. Okay. So thank you so much, Pratik sir, for this astounding session. I bet each and every student present here had an interesting and enriching experience with lots and lots of learnings. We are honored to have you here with us. Thank you for giving us your valuable time and sharing with us your thoughts and insights on this very practical aspects. I would also like to thank our very own Chairman, Harit Dhariwal sir, without whom this session wouldn't have been possible. Thank you, sir, for your support and guidance and for making events like this possible. Would also like to thank Rahul Mariwal, sir, Chairman, Vikasa, for his endless support and motivation. A very special thanks to the Vikasa committee for always being on their toes and organizing such extraordinary events and working so hard each day and in each session to make this beneficial for the students. Thank you to all the coordinators for their endless efforts and continuous support. Last but not the least, thanks to all the students present here for this session. Hope you all had great learnings from this session. Would also like and request sir to please stop the screen so that we all can have a group photograph. Thank you, sir. Jocelyn, over to you. Yeah, thank you so much. It means said that if you earn your bread well, then there are always people around you to butter you up.
So with that, I would like everyone to turn on their cameras and say cheese. I know you would be feeling hungry and as of now, but yes, please turn on your cameras. You will be featured in the next newsletter, guys. Turn on the cameras. Thank you so much, guys. Please hold on. Divya, are you taking the screenshot? Screen. Yep. Thank you. Done? Yeah, thank you so much, everyone. You all guys have been lovely audience to interact with, and thank you so much, sir, once again for sparing your time out of your busy schedule and sharing your wonderful insights with us. Thank you so much, sir. This was like 20 rupees invest your billions ka gyan mila. Thank you so much. Hope we all will be billionaires someday. And it's like the best way to predict your future is to create it. So let's create our future. I can see the glowing and growing faces of the future ahead. Thank you for joining with us. And yes, guys, there is another seminar. I think the timing is 3 p.m. Correct me, Divya, if I'm not wrong. Chintan sir seminar is at 3 p.m. Divya, am I audible? Yes, Jaslin. It's on Indes. Okay, thank you so much. So I am expecting you all guys to join at 3 p.m. for sure and to be punctual. Thank you so much. And yes, Divya has already shared with us something. Yeah, it's newsletter for me. Done. Yes. Thank you so much, Divya. So, sir, if you permit, can we leave this, can we end this meeting? Sure. Thank you. Thank you so much, sir.